चलिए, कल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के 3 क्वेश्चंस खत्म किए थे हमने। लिख लिख के लोग थक गए थे। आज बचे हुए क्वेश्चंस खत्म करते हैं पहले, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज बिजनेस सर्विसेज। आज आपके लिए मैंने क्या डिफरेंस किया है, तो कल जो पॉइंट्स मैं डिक्टेट कर रहा था वो पॉइंट्स मैं लिख के भी लाया हूं। मतलब ऐसा है कि आप वहीं के वहीं वो शॉर्ट पॉइंट्स देख के भी लिख पाओगे, तो it will create a kind of advantage for you. Let's come ahead with the importance of planning. The very first in that, helps to set the clear objectives. Helps to set the clear objectives. And that first point, concerned with setting the objectives, concerned with setting the objectives, it analyzes the present condition, it analyzes the present condition. Next point, identifies the ways to achieve the target, identifies the ways to achieve the target. Right? I hope this process is fine for everyone. मतलब वो कल तक के रिलेट करना थोड़ी सी दिक्कत वाली बात थी। यू आर एबल टू रिलेट ऑल्सो कि हम क्या लिख रहे हैं, पर अभी भी आपको लिखना ही है, नहीं तो आप ऑनलाइन वाले स्पेशली स्क्रीनशॉट लेके बैठ जाओगे। राइट, यू हैव टू कीप राइटिंग। प्रोवाइड्स द पाथ ऑफ एक्शन। अच्छा, ये जो है ये शॉर्ट पॉइंट्स हैं। हाँ, एग्जाम में सिर्फ इतना लिख के काम नहीं बनेगा, एग्जाम में इसी को इलॉबरेट करना पड़ेगा या एलोंगेट करना पड़ेगा, जो आप करना चाहो। हाँ, प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन एंड दैट goals or objectives are clearly stated. Goals or objectives are clearly stated. Next, it acts as a guide. It acts as a guide and provides the direction. And provides the direction. Next point, it helps the organization. It helps the organization to know what and how to do. To know what and how to do. Next head point, planning improves performance. For that, first bullet, by establishing objectives and selecting a course of action. And selecting a course of action. Next, it leads to the efficient working. It leads to the efficient working Next, the employees can work according to the time guidelines. The employees can work according to the time guidelines.
Next point, minimizes the risk. Minimizes the risk. After that, based on forecasting technique, based on forecasting techniques. Next point, it is a process of looking into the future. It is a process of looking into the future. Next point, it provides the ways to deal with changes and uncertain events. With changes and uncertain events. Next point, the risks cannot be eliminated. The risks cannot be eliminated, but can be anticipated. But can be anticipated and be tackled with the preventive measures. The preventive measures. Next one, leads to optimum utilization of resources. Leads to optimum utilization of resources. For that, first point, planning considers the available resources. Planning considers the available resources. And makes proper allocation of such resources. And makes proper allocation of such resources for various activities. For various activities. It can avoid wastages of resources by proper planning. By proper planning. Next, helps in decision making. Helps in decision making. टेक्स्ट सामने लिखा हुआ हो ना तो स्पीड भी महसूस नहीं होती है, और नहीं लिखा हो ना तो स्लो वाला भी स्पीड लगता है, जो कल हुआ तुम लोगों के साथ, राइट। आज हालांकि मैं कल से ज्यादा स्पीड में लिखवा रहा हूं, कल की कंपैरिजन में आज ज्यादा स्पीड में लिखवा रहा हूं, फिर भी नहीं, कल इससे ज्यादा स्पीड थी, नहीं, आई डोंट नो, सॉरी, मैं तो लिख ही नहीं सकता, सवाल नहीं होता, तुझसे लिखना ही ना हो, स्पीड में लिखना तो बहुत दूर की बात है। वो दुकान पे कई बार ना वो बिल नंबर लिखने होते हैं सीक्वेंशियली, सिर्फ वो लिखने को मेरे को जान पे आते हैं, नंबर्स, फिगर्स, जस्ट इमेजिन। यस, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। एट दैट फर्स्ट बुलेट, select the best alternative by considering
all the positive and negative aspects of all the alternatives, of all the alternatives. Next, the decisions are taken, the decisions are taken after selecting the alternative courses of action. The alternative courses of action. Next, useful in setting the standards of control. For that, sets out standards for controlling, actual performances can be compared with standards, actual performance can be compared with standards, deviation can be bridged, deviation can be bridged by taking the controlling steps. By taking controlling steps. Next one, facilitates coordination of all activities. Facilitates coordination of all activities. Under that, first one, reduces overlapping amongst the activities. जगह पे एक ही point. Reduces overlapping amongst the activities. Next one, all activities of business organizations, all activities of business organizations are linked with each other, are linked with each other. Next one, facilitates other management functions, facilitates other management functions. For that, all the other functions of management all the other functions of management are dependent on the planning function. Next point, if planning is done right, if planning is done right, comma,
The other functions will also be performed well. The other functions will also be performed well. Next one. Promotes innovative ideas. Promotes innovative ideas. It is a process of decision making. It is a process of decision making that involves the promotion of innovative ideas. That involves the promotion of innovative ideas. Next point. The innovative plans result in the attainment of goals. Next, planning is the most challenging activity for the management. Right? This process is fine for everyone. Okay? So we'll continue with this for all the remaining topics also. Right? Next one, staffing function. For that, the very first, effective managerial function. Effective managerial function. Below that, key to the effective performance of other functions. Key to effective performance of other functions. Next, competent workforce can work effectively. Competent workforce can work effectively in different functional areas. In different functional areas. Next, leads to effective utilization of human resources. Leads to effective utilization of human resources. Proper care is taken at every stage. Proper care is taken at every stage, such as recruitment, selection, or appraisal, etc. Or appraisal, etc. Next point. It results in an improvement
in the performance and progress of the organization. In the performance and progress of the organization. Builds cordial relationships. Builds cordial relationships. It is helpful in building the healthy relationships. It is helpful in building the healthy relationships amongst all the employees. Next, it becomes key to the better communication and coordination. It becomes key to the better communication and coordination. Right? Next, it helps the human resource development. It helps the human resource development. For that, it helps to inculcate the organizational culture Next, it trains and develops the existing workforce. It trains and develops the existing workforce. Next, it ensures the smooth functioning of all the managerial aspects. It ensures the smooth functioning of all the managerial aspects. Next point, helps in effective usage of technology and human resource. Helps in effective usage of technology and other resources. For that, first bullet, training and development programs are offered. Training and development programs are offered. Next, the organization gets quality employees. The organization gets quality employees through proper selection. Sorry, मिस किया ना मैंने, वाला सॉरी, helps in building competitive strength वाला पॉइंट लिखना था, my bad. Helps in building the competitive strength of the organization. Helps in building the competitive strength of the organization. Next point, it is helpful in improving the standard of work. It is helpful in improving the standard of work.
Next one, it improves the efficiency. It improves the efficiency. Training and development programs are offered. Training and development programs are offered. Next, the organization gets the quality employees through proper selection. Through proper selection. Next one, the performance level of employees, the performance level of employees can be improved through training. The performance level of employees can be improved through training. Next one, बहुत लिखना पड़ता है यार तुम सच में. मैंने 7 सप्लीमेंट जोड़ी थी मेरे ओसीएम के पेपर में when I was in my 12th standard. 7 सप्लीमेंट. I got 73. उस समय पे उतने मिल जाना मतलब बहुत मार्क्स होते थे सच में. तब 73 वाज अ वेरी गुड नंबर, क्योंकि इंटरनल वाले मार्क्स नहीं होते थे हमारे सिर्फ पेपर के मार्क्स होते थे. दैट वाज सफिशिएंट. हाँ ऑफ कोर्स आउट ऑफ 100. 80 में से नहीं, 73 आउट ऑफ 100. एंड दैट वाज मतलब गुड नंबर. हाँ आज के उस समय पे हाईएस्ट यूज्ड टू बी समवेयर अराउंड लाइक व्हाट 78 और 79 मार्क्स जो मेरिट रैंकर था. उस समय मेरिट रैंक डिक्लेयर हुआ करते थे. दे यूज्ड टू गेट व्हाट 78 79 80 मार्क्स हाईएस्ट टॉप. अकाउंट्स में 82 85 मैक्सिमम. 100 on 100 was never a question at that time. Never. Huh? 12 63. Hindi English जिंदाबाद ना. English was also there with us ना. हिंदी होता था हमको. डाउन तो भी साथ मतलब खुशी होता था. चैलेंज होते थे हमारे तो क्लास में. इकोनॉमिक्स और ओसीएम वाज चैलेंज. इकोनॉमिक्स आई हैड अटैच्ड व्हाट 4 सप्लीमेंट्स. इन अदर वर्ड्स जिंदाबाद. बहुत लिखा, बहुत मतलब बहुत. और जिसमें इंग्लिश सबसे बकवास. टुडे द लेवल ऑफ इंग्लिश दैट आई स्पीक, द लेवल ऑफ इंग्लिश विथ विच आई डील, दिस वाज आई वाज लाइक व्हाट 2% ऑफ इट. What English I have today, or the kind of English knowledge that I have today, the vocabulary that I have today, when I was in my 12th standard, I was nearly 2% of this. Maximum 2% of it. Seriously so. I was मतलब तुम लोगों के सामने इतना इंग्लिश जो बात करता हूं, इसका मैं कुछ भी बात नहीं. मतलब एक पूरा स्टेटमेंट इंग्लिश में विदाउट मेकिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक वाज अ चैलेंज. एंड स्टिल आई कुड गेट मार्क्स. सोचो तब सामने वाला कितना जबरदस्त होगा. चेक कर. Skillful workforce is always an asset to the organization. Skillful workforce is always an asset to the organization. It creates long-term positive effects. It creates long-term positive effects that can be observed, on the efficiency.
that can be observed on the efficiency. Next, essential contribution. Essential contribution. For that, it ensures the continuity and growth of organization. It ensures the continuity and growth of organization. Selection is based on the ability of prospective employee. Selection is based on the ability of prospective employee. Next, organization can meet the future challenges wisely. Organizations can meet the future challenges wisely. Next point. It provides the job satisfaction. It provides the job satisfaction. Through motivation through the financial and non-financial incentives. Motivation through the financial and non-financial incentives. Next point. Adequate remuneration increases the job satisfaction. Next point. The training and development programs create the job security. Create the job security. Next one, maintains harmony. Maintains harmony. That first point. The employee performance is regularly appraised. The employee performance is regularly appraised and promotions are given on merit. And promotions are given on merit. Next, the criterias are already made. The criterias are already made and communicated in advance. And communicated in advance. So this was about the various functions. Now justify the following wale questions. Planning is the basic function of management. Planning is the basic function of management. And that now यहाँ पे जो लाइन्स हैं बस इसी को इलाबोरेट करना है.
यहाँ मीनिंग डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है व्हेनेवर इट कम्स टू द जस्टिफिकेशन वाला क्वेश्चंस. In that you directly jump over the points of elaboration. Why would it be considered so? जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट को आपको सिर्फ जस्टिफाई करना है. उस स्टेटमेंट के बारे में आपको एक्सप्लेनेशंस सिर्फ उसी स्टेटमेंट को फोकस में रखते हुए करनी है. राइट? राइट डाउन. फर्स्ट वन, प्लानिंग सेट्स द ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली. Planning involves deciding in advance. Planning involves deciding in advance. Next point. Planning looks into the different courses of action. All the other functions are based on planning. All the other functions are based on planning. Add one more point. Planning foresees the future and tries to minimize the risks. And tries to minimize the future risks. Last point. Accordingly, planning is considered as the basic function of management. The basic function of management. Next one, organization facilitates administration as well. Organization facilitates administration as well. Under that, first point, organizing function is also called as the doing function. Organizing involves identifying the activities and grouping of the related activities. And grouping of the related activities. It defines the departmentalization, departments ऐसा लिख दो, the departments and assigns the activities. And assigns the activities. Due to the proper grouping of the tasks, it increases the production and reduces the wastages. It increases the production and reduces the wastages. Duplication of work can be avoided
duplication of work can be avoided by delegation. These all administrative works are better performed with proper organizing. Next one, controlling is the last function of management. Controlling is the last function of management. Under that, it is a function of comparing actual performance with standard. It is a function of comparing actual performance with standards. It measures the deviation and identify the causes. It measures the deviations and identify the causes. It also provides the corrective measures. It also provides the corrective measures. It also creates the base for the further plans. It also creates the base for the further plans. Even though pervasive, pervasive means at all levels, at all points. Even though pervasive, it is performed at the end of all functions. At the end of all functions. Right? So this was about the selected questions related to your topic of functions of management. अब हमें बढ़ जाना है आगे to the next topic, that is chapter number 4, business services. So let's deal with that now. The business services chapter. Chapter number 4 of your text, very important chapter because almost 25% of your total marks are allocated on this. इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं. टेक्निकली हमें क्या एक्सप्लेन करना है इज जो क्वेश्चंस बनते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर पे, दोज आर प्राइमरीली फ्रॉम व्हाट पर्सपेक्टिव? दोज कम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ let's say types of banks, functions of banks,
जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक अलग पूछे जाएंगे, सेकेंडरी और द यूटिलिटी फंक्शंस ऑफ बैंक अलग से पूछे जाएंगे, या फिर आपसे पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ वेयरहाउस, द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस. यू कैन हैव द क्वेश्चन ऑन टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस इंडिविजुअली. लाइफ इंश्योरेंस के क्वेश्चंस अलग, मरीन इंश्योरेंस पे अलग, फायर इंश्योरेंस पे अलग, टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी कमिंग सेपरेटली. तो शॉर्ट आंसर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, लॉन्ग आंसर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं. मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसेंटली पूछा गया है, वापस पूछने की गुंजाइश थोड़ी सी कम दिख रही है, बट दे कैन आस्क यू बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन. देयर कैन बी द क्वेश्चन ऑन द वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. Like there are the communication by post, there are the communication by phone, there are the communication of different kinds. These all things can be asked. और इतना pathetic है पोस्ट कार्ड, एनवलप, इनलैंड लेटर, देखना तो बहुत दूर की बात है. पहले हुआ करते थे ये सब कुछ, और आज भी सिलेबस में है. तो जब हम लोग वीडियो कॉल के जमाने में जी रहे हैं कि किसी को किसी के साथ, मतलब लिटरली किसी को भी किसी के भी साथ, कोई बंदा बिहार के किसी अननोन गांव से आया हुआ है और आज मुंबई में काम कर रहा है, दिल्ली में काम कर रहा है, पुणे में काम कर रहा है, बेंगलुरु में काम कर रहा है, या फिर फॉर दैट मैटर इवन साउथ में किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है, एट अ फ्लिक कम्युनिकेट कर रहा है. तो आप सीरियसली चले जाओ, वो जो ये जो हमाल होते हैं, ये जो कंक्रीट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले होते हैं, उनके कान में आपसे बेटर कनपुर्जे पड़े होते हैं हमेशा. और क्या सुन रहे हैं? रिंकी आके पापा, दैट काइंड ऑफ थिंग. तो सीरियसली मतलब पर what I'm trying to highlight, please try to understand modes of communication, what we have come on to and what we are learning on to. तब ये एक्चुअली पढ़ने वाली चीजें हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि पोस्टकार्ड नाम की एक चीज हुआ करती थी. देयर यूज्ड टू बी अ सीरियल, वीकली आता था, साप्ताहिक होता था, सुरभि नाम का प्रोग्राम आया करता था. ये was hosted by what? पल्लवी जोशी, नहीं, रेणुका शहाणे and सिद्धार्थ गर्ग for the people who host that particular show. और ये लोग क्वेश्चंस पूछा करते थे, उसके आंसर्स आप भेजो, फिर उसमें से पोस्ट कार्ड निकाला जाएगा आपका, और अगर आपका कार्ड निकला तो आपको इनाम मिलेगा. इस तरह के वो शो हुआ करते कार्ड्स. मतलब लिटरली पोस्ट कार्ड मिला करता था 15 पैसे में. मेरी आदत थी, मैं जाके 25-25 पोस्ट कार्ड एक साथ लाया करता था, या 20 पोस्ट कार्ड, 3 रुपए में 20 पोस्ट कार्ड आएंगे, 15 पैसे का कार्ड आता था. एंड आई वुड राइट दोज. तब वो 20 कार्ड्स एक साथ लिख के एक साथ भेजता था, कहीं तो लगेगा नंबर. बाद में गवर्नमेंट को पता चला जब कि ऐसी सिचुएशन थी, तो उन्होंने ब्लू पोस्ट कार्ड, एक नया कंसेप्ट लाया, जो प्रीमियम पोस्ट कार्ड, कि अगर आपको इस तरह के कॉन्टेस्ट में अपने सुझाव, आंसर्स भेजने हैं तो आपको वो ब्लू पोस्ट कार्ड यूज करना पड़ेगा. वो येलो वाला पोस्ट कार्ड उसके लिए आता था, और वो ब्लू पोस्ट कार्ड आता था 2 रुपए का एक. फिर भी अब 2 रुपए का एक भी विद इन रीच था, तो मैं 5 कार्ड लाया करता था, 10 रुपए के तो आएंगे, राइट. एंड इनके पास जो पोस्ट कार्ड आते थे ना, जो आंसर्स आते थे, दैट वुड नॉट कम एज कि 2000 लोगों ने भेज दिया या 5000 लोगों ने भेज दिया. ट्रक लोड से इनके पास पोस्ट कार्ड आया करते थे. तो देश के लोग आंसर भेज रहे हैं. दूरदर्शन पे आने वाला शो, उस समय पे था ही दूरदर्शन यार. तो दैट पोस्ट कार्ड, मतलब वो लिटरली दिखाते थे कि ढेरों पोस्ट कार्ड्स आए, और उसमें से इन्होंने पोस्ट कार्ड में से लिटरली लॉटरी काइंड ऑफ निकाली. भी मेरी लगी नहीं, वो बात अलग है, पर उम्मीद कभी नहीं छोड़ी मैंने जब तक कि वो शो देख रहा था. तो उस समय मेरे को बहुत शौक था ये सब चीजों का. मैं सारे एक्टर्स के पास पोस्ट कार्ड भेजा करता था, एक्टर्स के पास. क्यों भेजा करता था? सिंपल चिट्ठी भेजनी होती थी, सिंपल कार्ड. Why would I send it? Because they would send you the original photograph of theirs. They will click a photograph, और उस समय पे वो फोटोग्राफ्स, मतलब वो ये होते थे ना, प्रिंट होते थे वो फिल्म वाले. तो I would send the letters to these
वेरियस, और ये हमको कहाँ से मिलते थे उनके एड्रेसेस, तो उस समय पे एक मैगजीन आया करती थी वीकली, मायापुरी नाम की पेपर आया करता था, वीकली न्यूज़पेपर मायापुरी, विच वाज कंटेनिंग ऑल द बॉलीवुड का न्यूज। तो वो मैं पेपर सिर्फ देखने जाता था, खरीदा कभी नहीं मैंने। वो जो वेंडर्स होते हैं ना, जो बुक वेंडर्स वगैरह, उनके पास ये लगे हुए होते थे, तो वहां से सिर्फ वो लिख के आता था उनकी एड्रेस, और फिर घर पे आके उसको चिट्ठी लिखो, और फिर वो 2-2 महीने बाद, 3-3 महीने बाद, मतलब यू वुड राइट सम चीजी लाइंस इनटू दैट, वेरी क्रिंज काइंड ऑफ थिंग्स, सो लिटरली लाइक दैट, कि मैं आपका बिग फैन मोमेंट्स, यू नो, यू क्रिएट दोज फैन मोमेंट्स एंड यू सेंड दोज लेटर्स एंड यू विल बी गेटिंग द रिस्पॉन्स। और वो लोग लिटरली भेजा करते थे, आप चिट्ठी भेजते थे कि साइन की हुई, खुद की पर्सनल सिग्नेचर, ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ्स आती थी, तो इस वजह से ये सब चीजें किया करते थे हम लोग। फिर कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स थे जिनका एक सिस्टम हुआ करता था कि आप सपोज उनको अगर इंक्वायरी भेजो, तो दे वुड सेंड यू द होल ऑफ द प्रोस्पेक्टस विद सम कंटेंट, जो अच्छा कंटेंट लिख के भेजते थे, काइंड ऑफ दोज थिंग्स दे वुड सेंड यू। तो ऐसे में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के नाम निकालता था, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स है, ताकि उनकी खबर निकालते रहे। मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, देयर इज एन इंस्टीट्यूट विच इज फोकस्ड ओनली ऑन कम्युनिकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम, ये सब मैं कब कर रहा था, 7th स्टैंडर्ड, एंड आई वुड सिंपली राइट द लेटर्स टू देम। ये बहुत शौक था मेरे को, उनके लेटर्स लिखता था उनको, कहीं से भी उसकी एड्रेस मिली, बस वो एड्रेस पे वो लेटर भेज देना है, फिर दे वुड सेंड मी द बंच ऑफ बुक्स एंड आई वुड गेट फैसिनेटेड विद दैट, यस आई हैव गॉट बंच ऑफ बुक्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट। था उनका ही ब्रोशर, उसमें एक आध कंटेंट का कोई चीज आ जाता था, बट यू वुड गेट समथिंग लाइक, दे वुड सेंड द लेटर्स, दे वुड सेंड यू द डिटेल्स। आईसीएआई को मैंने पोस्ट कार्ड भेजे हुए। आईसीआई के जो मॉड्यूल आते थे एस्थेटिक क्वालिटी के होते थे, आजकल तो मतलब बहुत अच्छे बुक्स आते, पहले पहले लिटरली मॉड्यूल ही आया करते थे, पार्ट्स पार्ट्स में आया करते थे, ऐसा बंच बना के उसको ऐसे गार्ड बांध के ऐसे भेजा करते थे हमको बंडल। वी यूज्ड टू गेट द बंडल ऑफ बुक्स, इट वाज नेवर द काइंड ऑफ बुक्स दैट यू गेट दीस डेज। आजकल तो प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड तरीके से होता है। उस समय पे मैंने मॉड्यूल में चेक किया, मॉड्यूल में एक मिस्टेक निकली जो आज भी निकलती है। तो वो जब मिस्टेक निकली तो मैं फैकल्टी के पास गया, सर ये मिस्टेक है, कहने लगे हाँ ये बराबर है तेरा, जस्ट सेंड द लेटर टू द आईसीआई। आईसीआई को लेटर अपन लिख सकते हैं? कहने लगे हाँ यू सेंड द लेटर, आई सेंड द लेटर एंड आई गॉट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द बोर्ड ऑफ स्टडीज दैट इट इज बीन चेंज्ड फ्रॉम सब्सिक्वेंट मॉड्यूल। मतलब लेटर प्रॉपर आईसीआई के द्वारा लेटर लिया, भेजा गया मेरी तरफ। कहने का तात्पर्य क्या, ये सब चीजें हम लोग लिटरली पहले यूज किया करते थे, क्यों? क्योंकि वही कम्युनिकेशन के मोड अवेलेबल थे। आज की तारीख में अगर मुझे किसी को कोई फोटोग्राफ भेजना है, जस्ट क्लिक इट एंड सेंड इट ऑन व्हाट्सएप, दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग दीस डेज। क्लिक ऑफ द सेकंड द थिंग्स आर चेंजिंग। आज की तारीख में जेरोक्स वाले के पास चले जाओ, जेरोक्स वाले के पास गर्दी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग फोटो निकालते हैं, उसका प्रिंट निकाल लो यार, बात खत्म। इट्स एज सिंपल एज दैट फॉर अस नाउअडेज। तो इसीलिए वो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन और ये सब चीजें या तो वो हटा दे, या फिर जो लेटेस्ट वाले मोड्स अवेलेबल है उस पर फोकस करें। एलन मस्क बात कर रहा है कि मैं सैटेलाइट फोन लेके आऊंगा, विदाउट इंटरनेट फोन पे हेलो, या विदाउट इंटरनेट यू नीड टू एक्सेस द वेब, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। मतलब सैट फोन्स विच आर अनट्रेसेबल, अनट्रेसेबल, जिसपे आप कहां हो ये जब तक वो सैटेलाइट का कनेक्शन ना होगा तब पता नहीं चलेगा। दैट काइंड ऑफ थिंग इज एलन मस्क इज व्हाट टॉकिंग अबाउट। आज लोग रोज मार्स पे घूमने जा रहे हैं, वो स्टार लाइनर के थ्रू जाते हैं ना स्पेस में घूमने। देयर इज अ राइड अवेलेबल एलन मस्क की कंपनी में, स्टार लाइनर में देयर इज अ राइड अवेलेबल इन स्पेस, 15 मिनट की राइड होती है एट अ कॉस्ट ऑफ ओनली 2 करोड़। हाँ 2 करोड़ रुपए देके 15 मिनट घूम के आओ, स्पेस में देख के आओ तारे वगैरह सब कुछ ऐसे नजदीक से। सॉरी, आई अंडरस्टूड व्हाट ही सेड, सिर्फ मैं उल्टा बोलना चाहता हूं, नहीं अमीर बनना है अपने को कि 2 करोड़ देके अपन 15 मिनट घूमने के लिए रेडी है, बस इतना अमीर बनना है लाइफ में, इतना ही अमीर बनने की उम्मीद रखो बस। ज्यादा अमीर बनने में अपने को इंटरेस्ट ही नहीं है। एलन मस्क, जेब बेजोस तक के तो पहुंचना ही नहीं है अपने को, हड़। तो अपने जेब में इतना पैसा हो कि रोज 2 करोड़ भी खर्चा करने की सिचुएशन आ जाए तो कर सके, इतना सिर्फ अमीर बनना है बस। तो एनी विच वेज फॉरगेट अबाउट दैट। नहीं, डोंट फॉरगेट अबाउट द स्टेटमेंट्स।
forget about that at this point in moment, because we have to focus on business services. जो स्टार लाइनर प्रोवाइड करने वाला है तुमको 2 करोड़ रुपए लेके, तो तब तक 5 करोड़ हो जाएंगे, तो तुम खर्चा करने लायक होगे, तब तक स्पेस का कस्ट खर्चा बढ़ेगा ना, राइट? पेट्रोल है पहले ही महंगा हो रहा है। अच्छा, कल उनको एक वो कल परसों कहीं तो स्पेस में कोई कुछ तो मिला है, कुछ तो मिला है अपने लिए बादल, विच इज फुल ऑफ अल्कोहल। ये मैंने पहले भी क्लास में शायद बताया था ना। हाँ, उस दिन मेरे को मेरे बेटे ने भेजा था, आज फिर वो न्यूज में भी आ गया। अच्छा, एसएम सर ने बताया तुमको? मैंने ही बताया था क्या? ये इसने मेरे को कब भेजा था? कहीं तो भेजा था इसने, भाई ने मेरे को, मेरे बेटे के भाई ने फिर भेजा होगा व्हाट्सएप पे, यहाँ पे तो है ही नहीं। ये कब भेजा है इसने? 25 दिसंबर को। Scientists have discovered a giant cloud of alcohol 1,000 times larger than the diameter of our solar system floating in the space, enough to fill 400 trillion pints of a beer. 400 trillion pints of beer. तो ये दिल्ली वालों को भेज दो, तुम ऐसे ही खत्म करके आएंगे। कोई नहीं, दारू मिल गई जी। हाँ, यस। हाँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, दारू कोई भी टाइप की हो, सब चलती है उनको, कोई भी है तो बॉटल खोल। Here, let's focus on the business services. Introduction, very first. Business services are business support services, refer to those activities that act as auxiliary to trade and facilitate the smooth flow of the functioning. क्यों? मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं, मुझे मेरा पैसा संभालने के लिए बैंक चाहिए, मुझे मेरे रिस्क संभालने के लिए इंश्योरेंस चाहिए, मुझे मेरी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, मुझे मेरे सप्लायर्स के साथ, मेरे डेटर्स के साथ, मेरे कस्टमर्स के साथ बात करने के लिए कम्युनिकेशन चाहिए, और साथ ही साथ आई नीड द स्टोरेज प्लेसेस, दैट इज आई नीड द वेयर हाउसेज एज वेल. So these all auxiliary services is nothing but what you call as the business services. It include banking, insurance, transport, warehousing and communication. These business services are essential for the smooth functioning of any business in any part of the world. आप just imagine करो, Google नहीं, I think Facebook was down for almost 15 minutes. Facebook was down, Google भी down था. एक सिचुएशन आई थी जब Google करीब 12 से 13 मिनट डाउन था. मतलब गूगल ही डाउन हो गया ना. यूट्यूब तो इट इंक्लूड्स गूगल ना, यूट्यूब इज इंक्लूडेड विद इन गूगल. गूगल कुछ 12 से 15 मिनट के लिए डाउन था. कितना? 12 to 15 minutes only. What are the laws that was made by the company on a given date? Approximately $3 billion. कितने टाइम के लिए? 15 मिनट के लिए डाउन था. कंपनी का नुकसान कितना हुआ? $3 billion का. Why? Because all the services in the whole world are connected only to one thing, that is Google or internet. So these, अब Google internet, सर हम Google यूज तो सिर्फ वो सर्च के लिए करते हैं, भाई यहां जाना है बता कैसे जाए. ये बात है ना. गूगल मैप हो या फिर किसी, भाई मेरे को खाना खाना है, भूख लगी है, कहां जाऊं, तो आज गूगल यू गेट द आंसर. भाई वो मेरा पैर का चप्पल टूट गया, वो कहां बनेगा? कोची ऑन द गो. No, these सीरियसली, मतलब हमारे देश में ये चीजों की इंपॉर्टेंस है. जब बाहर देश में चप्पल टूट जाए किसी की, वो फेंक दे. हमारे देश चप्पल टूट के बनवून यायची आपल्याला, तो जोडून येऊ, और बराबर वो सिल्क, मतलब बोची भी प्रॉपर स्टाइल से इतना बराबर बना के देगा, एकदम न्यू जैसा ब्रांड. तो कहने का तात्पर्य क्या, वो इतनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसके बगैर तुम्हारी जिंदगी नहीं चल सकती. फैक्ट है. मतलब मैंने अगर किसी मूवी की टिकट बुक कर ली ना, तो बराबर जितना टाइम डिस्टेंस है ना, वो कंसीडर करके उतना टाइम पहले मेरे को बताता है, निकल पिक्चर का टाइम हो गया. तो लिटरली लाइक दैट. यू ट्राई टू बुक अ मूवी इफ इट इज कनेक्टेड टू कैलेंडर, गूगल कैलेंडर. तुम वो बुक माई शो जैसी वेबसाइट पे अगर टिकट बुक कर लो, और वो टिकट बुक करने के बाद तुम चेक करो, अगर तुम्हारी मूवी है सपोज 10 बजे की,
और तुम जहां पे रहते हो वहां से वो मूवी थिएटर करीब करीब 40 मिनट दूर है, 25 मिनट दूर है, वो तुमको बराबर गूगल कैलेंडर याद दिलाता है 40 मिनट पहले या 25 मिनट पहले या 28 मिनट पहले, कंसिडरिंग कि तुम्हारा ट्रैवल टाइम कितना है, चल अब अपना टाइम हो गया पिक्चर का, अदरवाइज तू लेट हो जाएगा। लिटरली इट डज लाइक दैट। ये हो गई एडवांस लेवल की सर्विसेज। पर आज भी हमारे पैसे को संभालने के लिए हमारे बैंक चाहिए, या मुझे मेरा बिजनेस चलाने के लिए पैसे चाहिए, पैसे कौन देगा? बैंक। वो तो गूगल नहीं दे सकता है, राइट? So for that purpose you need these all services, essential for smooth functioning. Every person who is engaged in the business must be fully aware of their functioning and use. The intangible, sorry, what are the features of these business services? Number one, intangible in nature. You are getting services from Google, but you are not able to see that service. That is intangible in nature. You cannot see it, you cannot touch it, but you are only feeling it. आप एक सैलो में चले जाओ, आपने बाल कटवा लिए, हाँ बाल कटते हुए देखते हैं, पर बाल कटने के बाद में जो फिनिशिंग आती है, दैट यू आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व एज सच। दैट्स व्हाई इट इज इनटेंजिबल इन नेचर। इनसेपरेबिलिटी, मैं और मेरी सर्विस इनसेपरेबल है। आज सुबह मैं लेक्चर नहीं ले पाया, देयर वाज सम हेल्थ इश्यू बिकॉज ऑफ विच आई कुडंट कम, एंड क्योंकि मैं वो लेक्चर नहीं ले पाया मतलब वो लेक्चर पेंडिंग हो गया है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई वो तुम देख लियो, मेरे को ही देना था, मैं ही नहीं था, लेक्चर कैसे होगा? इनसेपरेबल इन नेचर। बैंक की सर्विस बैंक को ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बैंक में अगर पैसे जमा करवाने, बैंक की सिस्टम डाउन है, पैसे जमा नहीं होंगे, इनसेपरेबल इन नेचर, राइट? एयरलाइन सर्विसेज, प्लेन नहीं उड़ा, नहीं सर्विस प्रोवाइड हुई, इट्स एज सिंपल एज दैट। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, अब मेरा काम मैं नहीं करना है ना, मेरा काम कोई और दूसरा तो नहीं करके जाएगा। हाँ, अगर सपोज हम लोग सेपरेट ट्रांसफर कर भी दे तो भी मेरे जैसा मैं खुद पढ़ाऊंगा, कोई और अगर पढ़ाएगा हो सकता है मुझसे बेटर पढ़ाए, पर वो उसके जैसा पढ़ाएगा, मेरे जैसा नहीं। नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर। आप किसी स्पा में चले जाओ तो वो जो स्पा सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, आप सपोज इमेजिन करो कि आपने एक बंदा डिसाइड कर रखा है, उसी बंदे से आपने स्पा करवाना है या वो मसाज करवाना है। अब वो बंदा अगर अवेलेबल नहीं है, दूसरा बंदा अगर मसाज प्रोवाइड कर रहा है, इन दैट केस सर्विसेज विल बी सेम बट डोंट हैव द फील ऑफ द सेम लेवल। यू विल कंपेयर, यार वाला बंदा अलग था, इतना अलग था वो इमेजिन नहीं कर पा रहे, पर अलग था, ये बात पक्की है। तो सेम वेज बैंक्स में अगर आप चले जाओ, एक बैंक की सर्विस उसी बैंक ने प्रोवाइड करनी है नहीं। अब सपोज मेरे कोटक में मेरा अकाउंट है, कोटक में मैंने पैसे डिपॉजिट करवाने हैं, कोटक का बैंक का अगर सर्वर काम नहीं कर रहा, आज नहीं कर रहा था एक्चुअली, सुबह कई प्रॉब्लम है, तो अगर कोटक का सर्वर काम नहीं कर रहा था, आई कैन नॉट गो टू आईसीआईसीआई, भाई मेरे उस अकाउंट में पैसे डलवा दो। दैट हैज टू बी डन बाय कोटक बैंक ओनली और नॉट, राइट? इनकंसिस्टेंसी, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया स्पा का, दो अलग अलग लोग सर्विस अगर प्रोवाइड करेंगे तो दोनों में कंसिस्टेंटली सेम तरह की सर्विस तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, मतलब वो रोबोट तो है नहीं, वो तेरी बातों में उलझा जिया, राइट? थोड़ी था ना भाई, नहीं देखी ना, मैंने भी नहीं देखी, मैं सुन के हैरान हो गया, बस उतने में ही खुश था मैं। तो बच्चे पैसे नहीं तो उसमें मैं कितना उलझ के आता वो सोच। The point is what, that these are the aspects, consistency will never be there। आप सेम बैंक के साथ अगर मैनेजर बदल जाए आपको सर्विसेज अलग मिलेगी। आप सेम इंश्योरेंस कंपनी से अगर सर्विसेज ले रहे हो, एक इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अलग सर्विसेज, दूसरे इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अलग सर्विसेज, वेयरहाउसिंग करवा रहे हो, एक वेयरहाउस में अलग सर्विसेज, दूसरे वेयरहाउस में अलग सर्विसेज, so there is non consistency when it comes to the services। perishable in nature, अब सपोज विमान उड़ने वाला है, विमान में 180 सीटें, 180 में से 160 ही बिकी है, बाकी 20 बिकी नहीं। अब बिकी नहीं तो भी विमान उड़ा, मतलब वो 20 सीट्स खाली तो खाली ही रह जाएगी या नहीं? उस समय पे आप ये कह सकते हो कि ये 20 सीट यहां पे रख के जाते हैं, बाद में भर के भेज देना, नॉट, राइट? दैट इज पेरिशेबल इन नेचर। सुबह मैंने आज लेक्चर लेना था, अगर सपोज वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, अभी का लेक्चर की एग्जांपल ले लो, अगर सपोज ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब पे ये सेशन अवेलेबल नहीं है, जितने लोग यहां पे अटेंड करेंगे सिर्फ उतनों को ही उसका उपभोग मिलेगा या नहीं? वंस दैट लेक्चर इज ओवर, इट्स ओवर एंड आउट, नो रिकॉर्डिंग, नथिंग ऑफ दैट काइंड इज अवेलेबल, राइट? एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड इट इज पेरिशेबल इन नेचर। आज की तारीख में हम लोग स्टोर कर रहे हैं बाय द वे ऑफ रिकॉर्डिंग्स, बाय द वे ऑफ प्रोवाइडिंग इट थ्रू द जीडी, पीडी एटसेट्रा, या यूट्यूब पे एक बार ये लेक्चर अपलोड हुआ तो उसके बाद अवेलेबल ही है, परसों से नहीं होगा यूट्यूब पे,
परसों से जूम लिंक आएगी, ओनली रजिस्टर्ड पीपल विल बी एबल टू एंजॉय, राइट? तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग. कंज्यूमर पार्टिसिपेशन इज मस्ट. मतलब मैं अगर बैंक से कोई सर्विसेज ले रहा हूं तो बैंक के साथ मेरा पार्टिसिपेशन, फीडबैक, रिस्पॉन्स जरूरी है. अगर मेरा फीडबैक नहीं जाता है तो बैंक विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड वेदर दे आर प्रोवाइडिंग द गुड सर्विसेज और बैड सर्विसेज. व्हाई द एयरलाइन कंपनीज वुड बी आस्किंग यू फॉर प्रोवाइडिंग द फीडबैक? मतलब वो ये नहीं पूछना चाहते कि तुमको एयर होस्टेस पसंद आई है नहीं. उनका पूछने का तात्पर्य यह है कि मैं जब उस पर्टिकुलर एयरलाइन में बोर्ड कर रहा था, वहां से लेके जब मैंने वो एयरलाइन अलाइड की, डीप्लेन किया, उस पॉइंट तक के वॉज द सर्विस राइट एंड गुड, एंड दैट इज व्हाट इज देयर एक्सपेक्टेशन. मैं तो हमेशा लिखता हूं, यार तुम्हारी सीटें बड़ी छोटी है. जब व्हेनसोएवर दिस फीडबैक वाला क्वेश्चन कम्स ना, मैं हर एयरलाइन को रिस्पॉन्ड देता हूं, तुम्हारी सीटें बड़ी छोटी है. मतलब इससे बड़ी सीट तो वो बस में मिलती है हमको, तुम भी तो उड़ती हुई बस ही हो, राइट? पर वो तो बगैर पर्याय नहीं एक्चुअली. पता है क्या, वो ठीक है, हम तो मतलब इंडिया में उड़ते हैं तो दिक्कत नहीं होती है, बट इंडिया के बाहर जब उड़ो ना, मतलब मैंने लोगों से सुना हुआ है, वो जब ऐसे वाली सीट्स पे बैठते ना, की हालत बहुत खराब होती है यार. तो ऐसे मतलब एक एक दो दो दिन तक याद रहता है कि अपन उड़ के आए हैं. तो कहाँ ही मतलब वो फीलिंग, मतलब इट्स नॉट अ गुड फैसिलिटी एज सच एक्चुअली बताऊं तो. मतलब इट्स नॉट. हाँ ठीक, एक सिर्फ अच्छा है कि वो धक्के नहीं बैठते. सीट्स इतने खराब होने के बावजूद भी बंदा सह लेता है कि वो धक 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 धक, मतलब वो रास्ते पे जा रहे हैं, मतलब धड़ा तो कहाँ कहाँ क्या क्या लगेगा पता नहीं. खैर, सो दिस वाज अबाउट द फीचर्स. ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ शॉर्ट नोट क्वेश्चंस. फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज, या फिर जस्टिफाई द फॉलोइंग में the services are inseparable in nature, services, business services are perishable in nature, those kind of questions can be there. या फिर जो objective type of questions आते हैं उसमें on one side business services, on another side either of the feature of business service can be there. So that is what you have to connect. इधर लिखते हैं business, उधर लिखते हैं banks, और inseparable दोनों लिखते हैं. लोग banks को connect करते हैं, business services bank, which is wrong. Business services have to be connected to features of the business services, right? So पहला बैंक सर्विस आ जाता है बैंक्स. बैंक्स में दो तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं. एक बन सकता है टाइप्स ऑफ बैंक्स में, और दूसरा बन सकता है ऑन द फंक्शंस ऑफ बैंक. जहां तक टाइप्स ऑफ बैंक्स की बात है, तो टाइप्स ऑफ बैंक्स में मल्टी वेराइटी, बहुत वेराइटी है बैंक्स की. Whereas functions of banks में primarily two types of functions. One is called as the primary functions and second is called as the secondary functions. Secondary functions को further divide किया गया है into the agency functions and the utility functions. Alright? एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले types of banks. Types of banks में variety of banks include the central bank. What is central bank? The apex bank of the country, which in our country it is Reserve Bank of India. This is not the day-to-day bank. This does not deal with the customers. The central bank is the banker's bank, and it is the bank for the government, right? It sets out the policies related to the banking system, which include the monetary policy, the credit policy for the country, right? ये हमेशा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सेकेंड, दैट इज, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये उन रिस्पेक्टिव बैंक्स के फीचर्स हैं जो आपको एक्सप्लेनेशंस में लिखने हैं, राइट? सेकेंड, कमर्शियल बैंक्स. These are the banks which are basically intending to make profits by doing what? By providing the various services to their customers. So they are the banks which basically deal with the customers. We have the commercial banks into two categories. One is public sector commercial banks, second is private sector commercial banks. Public sector commercial banks in which major investment is that of the government, whereas private sector commercial banks which include the private parties investments. Both these banks have the similar kind of functioning, whether it is a public sector PSB, public sector bank, or a private sector bank. Public sector banks to include State Bank of India, Punjab National Bank, the UCO Bank. These all are nothing but public sector banks. Private sector banks to include ICICI, HDFC, XII Bank. These all are nothing but
प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। देन कोऑपरेटिव बैंक्स, आपने आपके बचपन में मतलब कॉमर्स के 11th स्टैंडर्ड में कोऑपरेटिव नाम की एक कंसेप्ट सीखी थी, राइट? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1, विद इन दैट यू हैड अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव्स. So when an organization is working on cooperative basis and providing the funding services to the members of that society, then in that case it becomes a cooperative bank. The cooperative banks basically are located into the rural areas where you do not find the commercial banks as such. Then the next one, that is the development banks. इनका काम क्या है? Basically to create the development. They're not into the day-to-day banking services, but they are into the specific developmental areas where the government has the focus, to include NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, SIDBI, that is Small Industrial Development Bank of India, and KVIC. These are nothing but what we call as the development banks. Then exchange banks. यहां पे X को चेंज नहीं किया जाता. So they have the bank where you can give your X, you can get the another one's X. Exchange bank, nothing of that kind. These are basically the banks where you can provide the exchange services of money and monetary things. Especially now, आज की तारीख में exchange bank कोई काम नहीं करता. Tata Capital was having one of the separate unit called as exchange bank, जहां पे आप money, foreign currency को exchange कर सकते हो. आज की तारीख में these facilities are provided to you by the commercial banks itself. पहले कमर्शियल बैंक्स में इन सारी सर्विसेज को लेने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी और कई सारी कमर्शियल बैंक्स के पास फॉरेन करेंसी अवेलेबल ही नहीं होती थी. आज की तारीख में यू गो टू द एंड इसीलिए उस समय पे वो एक्सचेंज बैंक्स को सपोर्ट करते थे. एक्सचेंज बैंक में चले जाते थे हम लोग, उनके पास सारे टाइप की फॉरेन करेंसी होती थी. आप कहीं पे भी जा रहे हो अगर देश के बाहर, तो यू वुड यूज दैट एक्सचेंज फॉर द फॉरेन करेंसी. जैसे वो एसएम सर $100 लेके रखते हैं हर महीने, राइट? बट ही टेक्स इट फ्रॉम अ प्राइवेट पार्टी, नॉट फ्रॉम द एक्सचेंज बैंक, राइट? देयर आर द पीपल हु आर कॉल्ड एज द मनी एक्सचेंज. दे आर अलाउड टू लीगली. आज की तारीख में ये सब चीजों की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? कार्ड्स ना. आप जब एक्सचेंज करते हो करेंसी, सपोज आपने इंडियन रुपीज दिए और यूएस डॉलर खरीदे, इसमें आपको लगभग 1.5% का चार्ज लगता है, बेयर मिनिमम. मतलब आज अगर 85 रुपए प्रति डॉलर के हिसाब से चल रहा है, 85 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से अगर करेंसी का रेट चल रहा है, तो यू वोंट गेट द डॉलर एट 85 रुपीज. यू विल बी रिक्वायर्ड टू पे 87 रुपीज टू गेट $1. क्यों? वो 2 रुपए एक्स्ट्रा लगे हमको, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सचेंज सर्विस. इसी का काम, यही काम एक्सचेंज बैंक्स किया करते थे पहले. पर आज की तारीख में यू हैव गॉट द कार्ड्स, you have got the debit and credit cards. You go to a foreign country, swipe your card, na? Even the bank would be charging you the fees for that. Exchange services के लिए फीस वो भी लगाते हैं, पर तुमको करेंसी कैरी करने की जरूरत नहीं है. You're simply carrying that one card within which you can carry millions of rupees or not. Then why to take the risk of taking millions of dollars? The millions of rupees converted into dollars. मतलब मान लो अगर आप सपोज यूरोस का एग्जांपल लेते हैं, सिंपलर है थोड़ा सा. 100 रुपए लगभग 1 यूरो, लगभग 120 रुपए है. इनफैक्ट 110 120. पाउंड मेरे ख्याल से 100 रुपए पे, 103 पे, 100 रुपए लगभग. तो ऐसा क्या मतलब रोज का करेंसी में डील करते हैं क्या? तो पाउंड एकदम परफेक्ट रेट बता रहा है, 103 रुपया पाउंड चल रहा है, 110 रुपए यूरो चल रहा है, 85 रुपए डॉलर चल रहा है. रोज चेक करता है कि आज का एक्सचेंज का रेट क्या है. अच्छा, तब देखा वेल. तो 100 रुपए प्रति पाउंड, राइट? अब आपको सपोज 1 लाख रुपए के पाउंड लेके जाने हैं, तो आप हार्डली 4 पाउंड लेके जाने वाले हो साथ में. टू कैरी वॉट 1000 पाउंड्स, मतलब 2 बंडल खत्म. 1000 पाउंड इज नथिंग. अगर 100 सपोज उसमें भी अगर 100 पाउंड का एक नोट मिल गया आपको, 100 पाउंड का एक नोट, यू हैव गॉट 10 नोट्स with the value of 1 लाख रुपीज. फिर 1 लाख क्यों, 10 करोड़ ही ले जाते हैं. 10 नोट में 1 लाख रुपए आ रहा है, तो इसका मतलब 1000 नोट में तो 1 करोड़ रुपए आ जाना है. ये बढ़िया है सर तरीका कैश संभाल के रखने का.
तो जिसको 1000 करोड़ लेके रखने हैं, 1000 करोड़ क्यों लेके रखेगा वो? 1000 करोड़ मतलब कितने बंडल हो गए ना? अपने पास हाईएस्ट वैल्यू ऑफ करेंसी इज 500, तो 1000 करोड़ डिवाइड बाय 500 मतलब कितना हुआ रे? कितना नोट होता है? 1000 करोड़ रुपए डिवाइड बाय 500 रुपीज, कितना नोट लेके रखना पड़ेगा? डू इट। 2 करोड़ नोट्स। 2 करोड़ नोट्स लेके रखने के बजाय अगर हमने 100 पाउंड का एक नोट, तो कन्वर्ट 1000 करोड़ इंटू पाउंड, दैट कम्स टू 1000 करोड़ में कितना पाउंड आता है? 10 करोड़। 10 करोड़ पाउंड आएगा ना। 10 करोड़ पाउंड अगर 100 रुपए की नोट है तो हमको कितने नोट लगेंगे? 10 करोड़ नोट की जरूरत पड़ेगी ना। 10 करोड़ कितना हुआ? 10 लाख नोट। कहाँ हमको 2 करोड़ नोट संभालने पड़ रहे थे, कहां पे 10 लाख नोट पे आ गए हम लोग। तो करेंसी संभाल के रखने का कितना आसान तरीका है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। सो वेल, वी डोंट सपोर्ट ब्लैक इकोनॉमी इज द डिस्क्लेमर। हाँ, मेरे सारे पैसे वाइट पे आते हैं, लोग कैश में संभाल के रखें, कोई तरीका है? मेरे को पूरा टैक्स भरना पड़ता है। सीतारमन, मेरे अकाउंट में पैसे आते नहीं, सीतारमन पहले से खड़ी रहती है मेरा। दैट लिटरली ऐसा ही होता है। आते आते 10% तो सीतारमन लेके जाती है पहले से ही, और बाकी बच्चे बाद में लूंगी बोलती है। जब छोड़ेगी नहीं, एक पैसा नहीं छोड़ा आज तक के। खैर, सो दिस वाज एक्सचेंज बैंक्स, जहां पे हम लोग फॉरेन करेंसी इंडियन करेंसी में एक्सचेंज किया करते थे, बट नाउ डेज दोज आर लेस यूज्ड। रीजनल रूरल बैंक्स, RRBs, these were basically development banks for the regional areas, for the rural development of a particular area, जहां पे बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी, वहां पे बैंकिंग एज वेल एज डेवलपमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जो बैंक्स बनाई गई थी, दोज वर नथिंग बट रीजनल रूरल बैंक्स। देन इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ये नॉर्मल बैंक की तरह काम नहीं करते हैं। आप और मैं जैसे बैंक्स में चले जाते हैं, वहां पे बैंक में हम लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं, वहां से हम लोग लोन्स लेते हैं। दीज पीपल डोंट डू दोज काइंड ऑफ वर्क्स, दे आर बेसिकली द कंसल्टेंट्स। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर नथिंग बट कंसल्टेंट्स। मुझे मेरे बिजनेस के लिए 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है, मैं कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाता हूं, वो बंदा पहले एनालाइज करता है कि सच में मेरी औकात है क्या 1000 करोड़ रुपए के बिजनेस की, और एक बार कंफर्म हो गया हाँ इस बंदे को 1000 करोड़ रुपए फंडिंग चाहिए, तो दे विल फॉलो द पीपल हु आर रेडी टू इन्वेस्ट दैट 1000 करोड़ रुपीज। और फिर इन दोनों में लियाजनिंग करवाने का काम, इन दोनों को साथ में लाके इन दोनों के जो जोड़ तोड़ एग्रीमेंट करवाने का काम जो करते हैं, दोज आर नथिंग बट द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। सो दे आर बेसिकली इनटू द कंसल्टेंसी more than the banking services. They don't provide the day-to-day banking. They don't carry on the day-to-day banking functions as the normal commercial banks will carry on. Then specialized banks, the banks which are maintained or carried out for some specific category of work. That's why those are called as the specialized banks. इसमें इनफैक्ट आप नाबार्ड को इंक्लूड कर सकते हो वापस से. SIDBI is also included into that specialized banks only. Then स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड द पेमेंट बैंक्स, जो नई नई इजाद है, हमारे देश की इजाद है. दीज आर नॉट अवेलेबल एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. ओनली कंट्री कॉल्ड एज इंडिया हैज समथिंग कॉल्ड एज SFB, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड द पेमेंट्स बैंक. व्हाट दी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर, दे आर बेसिकली इनटू द माइक्रो फाइनेंसिंग. अब यहां कोई बंदा चाय की टपरी लगाना चाहता है दांडेगर पुल पे, एक तो वो बंदे पे भरोसा नहीं आता है, दूसरा वो जो एरिया में बिजनेस करना चाहता है वो गलत है, और तीसरा वो बिजनेस क्या करना चाहता है, चाय की टपरी. अब ऐसा बंदा वो अगर नियरेस्ट बैंक ICICI के पास या उससे भी नियरेस्ट बैंक IDBI इनके पास चले जाएगा ना, वो बंदा 1 रुपए का फंडिंग नहीं करेगा. क्यों? उसको पता है पैसा डूबने वाला है, क्योंकि इसको मैं EMI बांध के भी दूंगा, इसके पास EMI जितना पैसा जमा ही नहीं होगा. तो व्हाट दी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स डू, दे गिव द फंडिंग टू दीस काइंड ऑफ पीपल. माइक्रो फाइनेंसिंग कहते हैं हम लोग, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट कितनी, 50,000 रुपए सब मिला के. मतलब उसमें वो ठेला आ गया, ठेले की सिगड़ी आ गई, सिगड़ी पे वो टोप आ गया, टोप के बाद दूध के लिए अलग पतीला आ गया, वो बॉक्स आ गया जिसमें वो क्रीम रोल रखेगा. तो मतलब बिजनेस का इमेजिनेशन तो ऐसे ही होता है. तो 50,000 रुपए की टोटल रिक्वायरमेंट बंदे की, पर ये बैंक्स इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है. तो स्मॉल फाइनेंस बैंक इसको 50,000 रुपए देती है, और इसको क्या बोलती है, भाई तुम मैंने पैसे मत दियो, रोज का 100 रुपया तेरे से हम लोग रोज का 100 रुपया ले जाएंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, रोज का 100 रुपया इंटरेस्ट मिला के कलेक्ट करेंगे. EMI will not be calculated on monthly basis, EMI will be calculated on daily basis. और इनके कलेक्शन एजेंट्स होते हैं,
ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के, और वो जा जाके एक एक बंदे से 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए ऐसे कलेक्ट कर रहे हैं। व्हाई आर दे डूइंग इट लाइक दैट? एक तो माइक्रो फाइनेंसिंग हुई, कल को वो 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करके, सपोज वो सच में जेन्युइन बंदा था, उसका दिन भर का कलेक्शन 500 रुपए, चाय बेच बेच के 10-10 रुपए की चाय, तो दिन भर में अगर उसने 500 चाय बेची तो 5,000 रुपए का कलेक्शन होता है। 5,000 रुपए के कलेक्शन के अगेंस्ट उसका 3,000 रुपए तो खर्चा होता है, बेयर मिनिमम। क्यों? मटेरियल जो आ रहा है, उसके बाद में उस एरिया का हफ्ता, वो ठेले का रेंट, ये सारा निकल के उसका 3,000 रुपए तो ऐसे ही निकल जाना है, बचे 2,000 रुपए में। और उसके जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है बिजनेस से रिलेटेड, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है या फिर वो जो ठेला पार्क करेगा वहां की जो रेंट देनी पड़ेगी, दीज ऑल एक्सपेंसेस आर एडिशनल। गिन चुन के ये बंदा दिन भर में 1,000 रुपए बनाता है। अब ये 1,000 रुपए कमाने वाला बंदा पैसे महीने में 30,000 रुपए जोड़ता है, 30,000 रुपए तक जमा ही नहीं होते। क्यों? 1,000 में से सबसे पहले 200 रुपए की पाउटी, ये कल के लिए जिंदा रहना है, आज पिएगा तो कल जिएगा ना। तो दैट्स सीरियसली, दिस आर द काइंड, वी आर टॉकिंग अबाउट दोस काइंड ऑफ कैटेगरी। व्हाई वुड द बैंक गिव सच काइंड ऑफ फंडिंग टू देम? और इनके पास पेपर तो सवाल ही नहीं उठता ना, ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। एंड दैट इज व्हाई दी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर सपोर्टिंग देम। लोकल एरिया का सब्जी वाला, लोकल एरिया का कटलरी वाला, या फिर वो लोकल जो छोटे छोटे शॉप्स लगा के बैठे होते हैं बंदे, उनको फंडिंग करने का काम आर डन बाय दीज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। या फिर छोटे लेवल की फंडिंग जहां जहां करनी है, विच इज उनके स्पेसिफाइड लिमिट्स हैं, आपको वो सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। दे आर एबल टू डू द फाइनेंसिंग टू अ प्री स्पेसिफाइड लिमिट, दैट्स इट, राइट। देन पेमेंट्स बैंक, ये जनरल डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपीज। और ये कहां यूज होगा? नॉट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन टू द पब्लिक। नॉर्मल बैंकिंग फंक्शंस क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग लोन्स। ये लोग 1 लाख रुपए तक पैसा जमा तो कर सकते हैं, पर उसको ये लोग फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग लोन यूज नहीं कर सकते। तो किस चीज के लिए यूज करेंगे? फॉर पेइंग द मनी ऑन बिहाफ ऑफ देम। तुमने वॉलेट में 2,000 रुपए रखे, फिर जहां पे जाए क्यूआर कोड स्कैन करे, जहां पे जाए इधर से यूपीआई से ट्रांसफर किए पैसे। दिस इज व्हाई दोस पेमेंट्स बैंक आर वर्किंग, कि आप उनके पास पैसे जमा तो करवा सकते हो, बट दे आर नॉट एबल टू गिव दोस मनी एज द लोन्स। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल बैंक एंड अ पेमेंट्स बैंक, राइट। Functions of bank primarily divided into, as I said earlier, two, that is primary functions and secondary functions. Primary functions will include what? Accepting the deposits, providing the loans. इधर से पैसा आया, उधर को पैसा गया, पर पूरा का पूरा नहीं। After cutting the CRR and SLR, पूरा पैसा ये लोग डायरेक्टली मार्केट में उधार पे नहीं दे सकते हैं। Whereas secondary functions are what? The utility functions and the agency functions. Important from the perspective of the short answer question. Write the note on primary function, write the note on utility function, write the note on agency functions of the bank. So acceptance of deposit में क्या क्या आएगा? Number 1, the term deposits, and number 2, the demand deposits. What is term deposit? आपने एक प्री स्पेसिफाइड टर्म के लिए जब पैसा ले रखा हुआ है और एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड खत्म होने के बाद ही जब वो बंदा पैसा विड्रॉ कर पाएगा, देन इन दैट केस इट बिकम्स अ टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट्स आर प्राइमरीली ऑफ टू कैटेगरीज, दैट इज द रिकरिंग टर्म डिपॉजिट एंड द फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट, जिसे आप एफडी के नाम से जाते हो, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। वेयरएज इन केस ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स देयर आर टू कैटेगरीज। अब ये इसको डिमांड डिपॉजिट क्यों कहा जाता है? जब चाहो पैसे निकालो, जब चाहे पैसे जमा करवा लो। पहले होता था कि बैंक के टाइम पे हम लोग पैसे जमा करवा सकते हैं, बैंक के टाइम पे हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। आजकल वैसा नहीं। आजकल तो आप वो मशीन के थ्रू पैसे डिपॉजिट कर रहे हो, मशीन के थ्रू पैसे विड्रॉ कर रहे हो। आप सपोज पैसे विड्रॉ करने गए, कार्ड स्वाइप किया, कार्ड वो पंच इन किया, पिन डाला, पैसे डाले, और फिर पैसे नहीं निकाले, 2 चमाट मारो, पैसे आ जाते हैं, प्रोवाइडेड योर अकाउंट हैज द मनी, राइट। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कैशियर के लाइन में लगना पड़ता था हमको। लिटरली पैसे विड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग चेक जमा करवाते थे। चेक जमा करवाने के बाद में फिर वो बंदा हमको एक टोकन देता था, फिर हम लोग बैठते थे, फिर हमारा टोकन नंबर अनाउंस होता था, फिर हम लोग वो कैशियर के काउंटर पे जाते थे, फिर वो पैसे गिनता था। और अब हमारा पेशेंस खत्म हो रहा है और जाली लगी होती थी, उसको चमार भी नहीं मार सकते थे। लिटरली इट यूज्ड टू बी अ काइंड ऑफ जेल काइंड ऑफ सिचुएशन सिनेरियो। और वो जेल के अंदर से ऐसे आर पार उसको देखते थे हम लोग, और ऐसे ऐसे देखते थे कैसे गिन रहा है वो पैसे।
दे वुड काउंट इट सो फास्ट, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी वही स्पेशलाइजेशन, राइट? So that's where the things were, but nowadays that is not. But still, you would go to the bank and demand the money at any point in time if your account has the money or not. आजकल सिर्फ समय सीमा बढ़ चुकी है। आजकल आप मतलब जब शुरुआत में यहाँ पे एटीएम आए थे ना, एटीएम एज अ कंसेप्ट जब डेवलप हुआ था, तब बड़े मजे किए हमने। जब तब स्टूडेंट्स को स्पेशल, मतलब आईसीआईसीआई बैंक इतना चालाक बैंक है ना, आई रियली अप्रिशिएट देयर मैनेजमेंट, मिस्टर कामत, चंदा कोचर नहीं। तो चंदा कोचर स्टोरी सुनी है ना आपने, बहुत बड़ा कपला किया था उसने, वो वेणुगोपाल धूत को वो उसने पैसे दिए थे, उसको बेनिफिट मिला था, और फिर उसके बाद में बंदे ने पैसे डुबाए, इसके बैंक के, सैंक्शन करने वाली कौन? चंदा कोचर, एंड दोनों छूट चुके थे। फिर बाद में वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के थ्रू पता चला कि वो वेणुगोपाल धूत को जो आईसीआईसीआई बैंक से पैसे मिले थे, उसमें चंदा कोचर को किकबैक मिले थे। And based on that particular thing came out. You just search on Google, you'll be finding the whole detail of that. तो आईसीआईसीआई बैंक क्यों चालाक बैंक, क्यों होशियार बैंक? स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने कॉलेज में कैंपेन रन किए थे कि वी आर रेडी टू गिव द जीरो बैलेंस अकाउंट टू द स्टूडेंट्स। आप अकाउंट ओपन करके जाओ, बैलेंस जीरो मेंटेन करो, आपको 1 रुपया मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए अच्छा क्यों होता था पता है? महीने में एक बार पैसे आते थे, 2000 3000 मैक्सिमम, भाई कोई रईस बंदा है 5000। अब वो जेब में रखो तो चोरी होने का डर होता था, इसलिए अब बैंक आई तो हमने बैंक में जाके चेक पैसे जमा करवाना चालू किया। बैंक में पैसे उस समय पे भी इन्होंने, आईसीआईसीआई बैंक वाज द फर्स्ट टेक सेवी बैंक व्हिच स्टार्टेड विद द डिपॉजिट थ्रू द मशीन्स। उस समय हम लोग पैसे मशीन में कैसे डिपॉजिट किया करते थे पता है? एनवेलप होता था, एनवेलप में हम लोग नोट काउंट करके रखते थे, फिर वो एनवेलप चिपकाते थे और उसके बाद उसके ऊपर हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखते थे कि इस एनवेलप में कितने नोट कौन से वाले हैं, और फिर वो एनवेलप डिपॉजिट होता था। अगले दिन पे वो कैशियर कैमरे के अंदर वो एनवेलप खोलता था, नोट काउंट करता था, और फिर हमारे अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट होते थे। आजकल जैसे मशीन खुद काउंट करती है, तो तब एनवेलप के थ्रू हम लोग ये डिपॉजिट वाला काम करते थे। खैर, तो उस समय पे इन्होंने हमारे स्टूडेंट्स कार्ड के नाम पे अकाउंट्स ओपन करवाए। मैंने फेक आईडी कार्ड बनाया था, क्योंकि सीएज स्टूडेंट, कॉलेज था नहीं, तो मैंने फेक आईडी कार्ड बनाया कॉलेज का, कोई अपना ब्रांडेड वाला। तो वो फेक आईडी कार्ड के बेसिस पे मेरा अकाउंट ओपन हुआ। गाँव गाँव सब कुछ बराबर लिखा था, उसमें कुछ फेक नहीं किया था मैंने, पर आईडी कार्ड नहीं था, वो फेक बनाया था, तो वो दिया, मेरा अकाउंट ओपन हुआ। अब ये क्यों होशियार थे? जस्ट ट्राई टू इमेजिन, if as a student I'm opening the account when I'm graduating, over the period of time I'm going to get settled somewhere, I may get the job somewhere, I may start doing the business, उस समय पे मेरा वही अकाउंट होगा या नहीं? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरा पहला अकाउंट ओपन हुआ 2000 में आईसीआईसीआई बैंक में, इन द ईयर 2000, एंड इट्स 2024 नाउ, आई एम स्टिल मेंटेनिंग द सेम अकाउंट, आई एम स्टिल हैविंग द सेम बैंक अकाउंट। 2000 से लेके 2024 तक सेम अकाउंट चल रहा है मेरा। बैंक का फायदा क्या हुआ? एक लॉन्ग टर्म एंड्यूरिंग कस्टमर मिला या नहीं? सपोज वो जितने लोगों ने अकाउंट ओपन किए थे उसमें से सिर्फ 20% ही लोग मेंटेन कर रहे हैं। 20% इज व्हाट नंबर? मान लो उन्होंने पुणे के, सिर्फ पुणे के 50 कॉलेजेस में जाके अकाउंट ओपन करवाए, ऑन एन एवरेज हर कॉलेज में 3000 बच्चे, 3000 में से सपोज 2/3 बच्चों ने अगर अकाउंट ओपन करवाया, मतलब 2000 बच्चों ने, 2000 बच्चों ने 50 कॉलेजेस के, मतलब 1 लाख बच्चों ने अकाउंट ओपन करवाया नहीं? उस साल के लिए 1 लाख अकाउंट मिले उनको। इस तरह से उन्होंने अगर ये पर्टिकुलर थिंग सिर्फ 5 साल के लिए रन की, 5 लाख अकाउंट्स मिले। वो 5 लाख अकाउंट में से सिर्फ 20% अगर आज तक के मेंटेन, मतलब 1 लाख अकाउंट्स। और अगर ऑन एन एवरेज मेरे जैसे 1 लाख कस्टमर्स, इनके पास सिर्फ 25,000 रुपए मेंटेन करते हैं, कितना? सिर्फ 25,000 रुपए ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। 1 लाख लोग, 25,000 रुपए goes to 25,000 lakhs, 250 करोड़ रुपए उन लोगों के उनके पास जमा है या नहीं? जो हम लोग जिंदगी में कभी विड्रॉ नहीं करने वाले। विड्रॉ करेंगे वापस डिपॉजिट होगा, विड्रॉ करेंगे वापस डिपॉजिट होगा, मतलब इनके पास 250 करोड़ फॉरएवर जमा हो गया है नहीं?
इसका सीआरआर एसएलआर अगर मैंने माइनस कर दिया सपोज 35%, आज की तारीख में जो सीआरआर एसएलआर का रेट है उसको कंसिडर करके 30% फॉर द राउंडिंग ऑफ पर्पस, मतलब 75 करोड़ चला गया। 175 करोड़ का लोन ये हर साल दे पाएंगे? 175 करोड़ रुपए पे इन्होंने ऑन एन एवरेज सिर्फ 10% अगर ब्याज लगाया, ओनली 10%, they are earning 17.5 crore free of charge just by opening those accounts at that time every year। और ये मैंने सिर्फ पूना का एग्जांपल बताया। ऐसे अगर इन्होंने सिर्फ 50 सिटीज में काम किया, ओनली 50 सिटीज, प्रोमिनेंट सिटीज, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, मुंबई, मुंबई ऑल सबर्ब्स, हैदराबाद, चेन्नई, पंजिम, if they have gone to only these kind of places, the prominent places, सिर्फ 50 सिटीज में चलेगा, और 50 सिटीज में, अहमदाबाद, सूरत, 50 सिटीज में अगर इन्होंने अकाउंट ओपन किए, जस्ट इमेजिन 50 into 17.5 crore rupees is what they are earning just because of that investment. They are earning, this is pure profit for them। इसके लिए इनको खर्च नहीं करना पड़ रहा है। क्यों खर्च? कितना? 3%। सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट 3% is what they are spending, still they are making money out of that or not? This is what we call as the long term and the macro thinking। Well, anyways, so demand deposits are savings deposit and current deposit। Savings deposit are what? Where you are opening the account for mobilizing your savings। इसलिए सेविंग्स पे आपको ब्याज मिलता है बट अ नॉमिनल रेट। सेविंग्स पे आपको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस का लिमिट होता है। यू कैन नॉट कीप विड्रॉइंग, कीप डिपॉजिटिंग द मनी, देयर इज अ लिमिटेशन पुट टू दैट, and there are certain charges levied beyond a particular point if you are getting the services। Whereas current account primarily for the businesses, that is the account which is opened for the business activities। There is no restriction, no limitation on number of deposits and number of withdrawals from the current account। Then granting of loans, primarily what kind of loans they are giving? They are giving the short term, medium term and long term loans। These are term loans। Term loan means what? You are giving the loan now and you are getting repaid over the period of time, that's why those are called as term loans। The term loan can be for a shortest duration like 3 months and 6 months, or it can be a medium term loan kind of 1 to 3 years, or it can be a long term loan from 5 to 20 years। Like if you take the example of housing loan, which is a long term loan, but if you take the example of a personal loan, which is a medium term loan, 1 to 3 years ka loan, or if you take the example of education loan, that's a medium term loan। But if you're taking a loan for only loan against gold, that's a short term loan। Why? Because within 6 months you have to repay that particular loan। The gold loan is always or loan against shares, loan against securities, these are nothing but the short term loans। Then short term loans will normally be having the low rate of interest, whereas the long term loans, sorry, high rate of interest, whereas the long term loans will have the low rate of interest। सर ऐसे कैसे? शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा और लॉन्ग टर्म के लिए कम। ऑब्वियसली जब लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया जाएगा तो लॉन्ग टर्म के लिए बैंक को पैसा कमाने का स्कोप है या नहीं? Whereas जब शॉर्ट टर्म लोन की बात की जाती है तो बैंक के पास पैसा कमाने के लिए समय कम है। That's why the short term loans will normally have high rate of interest, whereas the long term loans will generally have low rate of interest। इसीलिए हाउसिंग लोन is available at 9% on an average, 9 से 10% की रेंज में मिलता है, whereas the personal loan is available at 14 to 15%। Of course there are two reasons behind why personal loan is more costlier and the housing loan is more cheaper। security, housing loan में security है, personal loan में no security। सर पर गोल्ड लोन में तो सिक्योरिटी है, प्योर सिक्योरिटी है, गोल्ड ज्वेलरी, पर ड्यूरेशन कम है ना, पैसा कमाने का स्कोप कम है नहीं। That's why the rate of interest will normally be higher in case of the gold loan। Then advances in the form of cash credit। This is cash credit is reverse of current account। कैसे reverse of current account? current account में क्या होता है? आप पैसे जमा करवाते हो, जितना पैसा आपके करंट अकाउंट में पड़ा है उतना पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो, राइट? कैश क्रेडिट इज एग्जैक्टली रिवर्स। बैंक प्रोवाइड्स यू अ लिमिट, आप उस लिमिट तक का पैसा कितना भी पहले विड्रॉ करोगे और फिर जब चाहे आप डिपॉजिट कर सकते हो। टर्म लोन और एडवांसेस में फर्क क्या होता है? टर्म लोन के केस में एक बार आपने रीपेमेंट कर दिया, यू नॉट विड्रॉ इट बैक। बट कैश क्रेडिट, if you have withdrawn the money, you deposit it, again at a later point you require, you again withdraw। So you can withdraw and deposit at the multiple points।
when it comes to the cash credit. On top of that, in case of cash credit, the interest is charged only on the amount utilized or the number of days utilized. मान लो मेरी 1 करोड़ रुपए की लिमिट है, पर उस 1 करोड़ रुपए में से मैंने विड्रॉ किए केवल 10 लाख रुपए, दैट टू ओनली फॉर 10 डेज, और 10 दिन के बाद वो 10 लाख रुपए मैंने डिपॉजिट कर दिए. इन दैट केस आई विल बी चार्ज द इंटरेस्ट ओनली ऑन 10 लाख रुपीज ओनली फॉर दैट 10 डेज, नथिंग बियॉन्ड दैट. पर मैंने अगर 1 करोड़ रुपए का टर्म लोन लिया है, दे विल डिसबर्स मी द होल 1 करोड़. मेरे को भले यूज करना है नहीं करना है, तुम्हारा 1 करोड़ रुपए दिया, एंड लेटर ऑन they will start charging the interest on the whole 1 crore rupees, and as and how I keep repaying, my interest will keep getting reduced to the extent of the amount repaid. That's it. That's the major difference between a term loan and a cash credit loan. Overdraft is similar to cash credit. फर्क ये है, overdraft is given over and above your current account. जो भी आपका अकाउंट चल रहा है, जो भी आपका करंट अकाउंट है, उसके ऊपर आपको एक लिमिट दे दी जाती है, उस लिमिट तक आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो. Whereas overdraft is a short term plan. Short term means 3 months to 6 months, whereas cash credit is generally given for 1 full year. Then discounting of bills. आज की तारीख में this is nothing but discounting of checks. आपके पास एक पोस्ट डेटेड चेक पड़ा है, आपसे सपोज फीस के तौर पे हमने पोस्ट डेटेड चेक लिए, अब हमको पैसे की जरूरत है. We can go to the bank and give the checks. They will discount it. They will charge the interest technically on that, and they will give us the money. और जैसे जैसे वो चेक की डेट आती रहेगी, वैसे वैसे they'll keep on depositing and getting their money back from the particular check. It is similar to bill discounting. Bill discounting के केस में आप डिस्काउंट चार्जेस कैसे कैलकुलेट करते हो? बिल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू ड्यूरेशन ऑफ बिल डिवाइड बाय 12 मंथ्स और नॉट. उसी तरह से चेक डिस्काउंटिंग जब की जाती है, मान लो मेरे पास 2 महीने बाद का चेक है, मुझे आज पैसा चाहिए, I'll go to the bank, bank will take that particular check, then check amount into rate of interest into the 2 months divided by 12 will be the amount of discount, and balance amount will be credited to my account. That is how that check discounting thing works. नहीं पड़ती है जरूरत, पर facility available है. The agency functions which are provided by the banks these days are the portfolio management. What is portfolio management? आपको शेयर्स खरीदने, पर आपको अक्कल नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, पता है मेरे को, पर आपको इन्वेस्टमेंट फिर भी करनी है, राइट? चुली इतनी खतरनाक है अपनी कि अपने को ओवरनाइट मुकेश अंबानी बनना है, पर अक्कल तो है नहीं, तो फिर क्या? जिनके पास अक्कल है उनको पैसे दो. दे विल टेक योर मनी. दे हैव द रैशनल पीपल, दे हैव द नॉलेजेबल पीपल, दे हैव द स्किल सेट, एंड दे हैव द मार्केट इंफॉर्मेशन, एंड दे आर कंप्लीटली इन्वॉल्व इनटू दैट. So those people are doing the investment on your behalf, and later on your earnings are been credited to your account. और इसके लिए annual basis पे आपको एक specific charge लगाते हैं, that is called as portfolio management fees. So these kind of portfolio management services are available from the banks. Dematerialization, of course, that's the need of the time. None of us can hold the share certificates or even for the times to come mutual fund certificates in the physical format. Those are held on behalf of us in the dematerialized form by the depositories. अब हम depository में direct account open नहीं कर सकते. Depository is nothing but a kind of big warehouse. वो big warehouse में जाके हम लोग रोज अपने चेक shares deposit कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं. We cannot do that. For that purpose, depositories have given this authority to the banks, and banks provide that service of dematerialization to us. So our shares and securities which are held in the electronic format can be held in the demat account with the banks. So हम बैंक्स में आप 2 टाइप के अकाउंट ओपन कर सकते हैं. एक तो हमारा बैंक अकाउंट नॉर्मली कैश वाला अकाउंट, और दूसरा शेयर्स वाला अकाउंट, दैट इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल एज डीमैट अकाउंट. तो जब हम शेयर्स खरीदेंगे हमारा डीमैट अकाउंट क्रेडिट होगा, जब हम शेयर्स बेचेंगे हमारा डीमैट अकाउंट डेबिट होगा, राइट? देन फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस. आज की तारीख में यू आर प्रोवाइडेड द फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस, जो मैं थोड़ी देर पहले एक्सचेंज की बात कर रहा था. यू कैन एक्सचेंज द फॉरेन करेंसी विद द कमर्शियल बैंक्स दीस डेज. फंड ट्रांसफर, आपको यहां से किसी और, वो जो आप करते हो ना पेटीएम करो एंड ऑल दैट, धन्यवाद भारत पे नहीं फोन पे, हाँ फोन पे 10 रुपए प्राप्त हुए देवी और सज्जनों, धन्यवाद. ये जो करते हो आप, ये बैंक के थ्रू हो रहा है. देयर इज अ बैंक विच इज इन्वॉल्व इनटू दैट. वो डायरेक्ट अमिताभ बच्चन और आपका कन्वर्सेशन नहीं चल रहा है, वो कि तुमने अमिताभ बच्चन को 10 रुपए दिए खुश रहे.
right? So that's where the banks have the important role to play. They are becoming your agent into that. So your account is getting debited and the another person's account is getting credited. In this, your bank is providing the service to you, their bank is providing the services to them. In between, the services are provided by RBI to both the banks, and that is how the banks are becoming your agent. That's why they are providing you the agency service. पीरियोडिक कलेक्शंस एंड पेमेंट्स, जो ईसीएस नाम की कंसेप्ट होती है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, मतलब मुझे इलेक्ट्रिसिटी के बिल के पेमेंट करने हैं, फोन बिल पेमेंट करने हैं, मुझे म्यूचुअल फंड के एसआईपी का पेमेंट करना है, हर महीने मैं वो म्यूचुअल फंड वाले के पास जाऊं या वो म्यूचुअल फंड वाला बंदा मेरे घर पे आके खड़ा रहे, चलो पैसे दो, शुड नॉट हैपन. फॉर दैट पर्पज आई हैव गिवन द इंस्ट्रक्शन टू हुम, टू दैट बैंक, कि भाई ये जब भी आएगा ना इसको पैसे दे दियो, प्रोवाइडेड मेरे अकाउंट में पैसे हो तो, ऑब्वियसली उसके बगैर वो पैसे नहीं देंगे. योर ECS will get bounced in that case, right? So if you have given the instructions to your bank and your bank is making the payment on your behalf, then in that case it becomes an agency function. Similarly, अगर suppose कोई particular कंपनी में आपके शेयर्स है, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, अब वो डिविडेंड का पहले आता था चेक, पर आजकल वो चेक आना बंद हो गया. आजकल आपने बैंक को बता दिया, भाई मेरा डिविडेंड आएगा ना, रख लियो, मेरे अकाउंट में पैसा डाल दियो, जब भी आएगा रख लियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे अकाउंट में अपना ही शेयर्स है. So what companies do now? They directly transfer the money to your bank account. They don't give the money to you. So bank is becoming an agent for you in this case. That's why that is also an agency service from the bank. Then utility functions, issue of drafts. कहीं अगर आपको authentic payments करनी है, अब suppose मैं अब recently it had happened, MSCB में मेरे को वो रिचार्ज करवाना था, हमारे यहाँ पे प्रीपेड मीटर्स है, तो हम लोग रिचार्ज करके आते हैं, बाद में हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. तुम लोग जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो, बाद में बिल आता है, बाद में तुम पैसे भरते हो, और पैसे नहीं भरे तो लाइट कटती है. हमारे यहाँ वैसा नहीं है, हमने अगर रिचार्ज नहीं किया तो लाइट कट जाती है. दैट्स सिंपल, मतलब पहले पैसे भरो, बाद में लाइट मिलेगी, एज सिंपल एज दैट. तो अब मैं जाके उनके पास गया, यार ये मेरे को हर 2-2 दिन में, हर हफ्ते भर में आने को नहीं होता मेरे को. उनके पास लिमिट लगी हुई है कि 5,000 से ज्यादा रिचार्ज नहीं करेंगे. बोला यार 50,000 का रिचार्ज एक बार का करके खत्म कर दो ना, मैं 50,000 मेरे अकाउंट में डालना चाहता हूँ, मेरे को टेंशन ही नहीं चाहिए रोज रोज के आके रिचार्ज करूँ, मैं आके लाइन में खड़ा रहूँ, फिर तुमको मेरा फ्लैट नंबर दूँ, फिर मैं वो कहाँ पे रहता हूँ वो सब डिटेल बताऊँ, और उसके बाद में तुम मेरे को एक चिट्ठी फाड़ के दोगे कि ये 4,000 रुपये का तुम्हारा रिचार्ज हुआ, जाओ खुश रहो. आई डोंट वांट दिस. तो ये 50,000 रुपये रखो, साल भर की इलेक्ट्रिसिटी हुई, वैसे भी उतना खर्चा मैंने करना ही है, साल भर में मैंने 60-70 हज़ार रुपये की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी है, दुनिया भर की मशीन यूज करता हूँ मैं. तो इफ दैट इज द केस, आई वॉन्ट द सर्विसेज. वो देने को तैयार नहीं. फिर वो बोले नहीं नहीं, अगर आपको सच में चाहिए तो हम आपको 10,000 रुपये तक का रिचार्ज करके दे सकते हैं, 4-4 2,000 के डिवाइड में करके देंगे, पर उसके लिए डिमांड ड्राफ्ट लगेगा. भाई डिमांड ड्राफ्ट क्यों? मैं कैश देने को तैयार नहीं, कैश नहीं लेते हम लोग. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट डज नॉट एक्सेप्ट कैश, दे एक्सेप्ट ओनली डिमांड ड्राफ्ट या फिर ऑनलाइन पेमेंट. तो मैं क्या यार, वो ऑनलाइन पेमेंट तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तुम कब ट्रैक करोगे, कब तुम्हारे पास आएगा, मैं डिमांड ड्राफ्ट लेके आता हूँ. आई आस्क देम यार चेक दे दूँ चलेगा? तो नाउ दे एक्सेप्ट द चेक्स ऑल्सो. अब हुआ यूं कि मैंने जिस अकाउंट का चेक दिया था, वो इंसिडेंटली जिस दिन चेक दिया था उस दिन याद था, जिस दिन चेक दिया था उस दिन याद था, भाई चेक दिया हुआ है, मेरे अकाउंट में से डेबिट होंगे. बाद में मैंने फ्लो में वो पैसे यूज कर लिए, मेरे को याद ही नहीं रहा बाद में कि चेक दिया हुआ है मैंने, फ्लो में पैसे यूज कर लिए मैंने, नहीं बाउंस नहीं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का मैसेज आया मेरे को दैट वी हैव डिपॉजिटेड द चेक विच विल गेट डेबिटेड टू योर अकाउंट टुमारो, थैंक यू. इमीडिएटली मैंने ट्रांसफर किया, पर बाउंस होने के चांसेस है नहीं. डिमांड ड्राफ्ट बाउंस नहीं हो. क्यों? आप बैंक को पहले पैसे देते हो, फिर बैंक अपनी अकाउंट का चेक आपको देता है, आपके अकाउंट का नहीं, उन्हीं के अकाउंट का चेक आपको देता है. दैट इज कॉल्ड एज बैंकर्स चेक. तो ये ऑथेंटिक हो गया है नहीं. ये जब मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को दूंगा, वो बाउंस होने का चांस ही नहीं है ना. वो कब डिपॉजिट कर रहे हैं उससे मेरा कोई लेने देने ही नहीं है. पर अगर मैंने मेरे बैंक अकाउंट का चेक दिया तो मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा. ये तो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाले बंदे अलग अच्छे हैं, एकदम वो सदोरे बाढ़, पर अगर नहीं बताया होता, चेक बाउंस हो जाता, मेरा अगले महीने से वो इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज नहीं करके देते कि नहीं नहीं तुम्हारा चेक बाउंस होता है, राइट. भले ही मेरे अकाउंट में अदरवाइज पैसे थे, तो किसी दूसरे अकाउंट में पैसे, वो अकाउंट में पैसे कम रखता हूँ जानबूझ के, खर्चे होते हैं, देखा नहीं वो खर्चे कर दिए मैंने. तो क्योंकि वो सब जगह पे लिंक्ड है, तो जो अकाउंट लिंक्ड हो ना उसमें पैसे कम ही रखने चाहिए. जो अकाउंट कम जगहों पे लिंक्ड है वहां पे आप कितने भी पैसे रखो ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है. चोरी होने का डर ही कम हो जाता है ना, राइट. क्योंकि ये जो आजकल के ये चालबाज लोग चल रहे हैं ना, उनसे बच के रहना पड़ता है. मेरे पास तो एक अकाउंट ऐसा है जिसका कोई
फोन बैंकिंग वाला सिस्टम ही नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, मतलब मेरे को अगर उसमें से पैसे निकालने हैं तो चेक से निकालना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑनलाइन कंसेप्ट इच नहीं कि यूजर आईडी ओटीपी, हाँ चाहिए नहीं ओटीपी, अकाउंट ही लिंक नहीं किया मैंने, खैर। और दूसरा उसका पर्याय क्या है पता है, अगर आपको इन सब चीजों से बचना है, यू मेंटेन 2 नंबर्स। आपके जो ऑफिशियल चीजें हैं, जहां जहां सिर्फ ऑफिशियल चीजें, बैंक्स, इंश्योरेंस, आधार, कॉलेज, यहां पे आपने वो नंबर देना है। कॉलेज में नहीं, कॉलेज वाले बात भेज देते हैं, यहां पे आपने वो वाला नंबर देना है। और दूसरा नंबर जो है पब्लिक में बांटो, सबको ये नंबर दो, लोग उस पर ओटीपी भेजने की कोशिश करेंगे, आएगा ही नहीं, नंबर ही लिंक्ड नहीं है, ओटीपी कहां से आएगा, राइट। ट्रैक बंदा कौन सा नंबर कर सकता है, जो पब्लिक में अवेलेबल है, जो पब्लिक में अवेलेबल ही नहीं है वो नंबर ट्रैक कहां से होगा। So these are the 2 different ways in which you can protect your money. Locker facility. Locker facility is what? They are not maintaining it for keeping their cash. They are maintaining it for keeping your movable items which are having value. Valuables जिसे आप कहते हो। आपको पैसा रखना है, आपको ज्वेलरी रखनी है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, उसके लिए दे प्रोवाइड यू द फैसिलिटी। सो दिस इज अ यूटिलिटी फॉर मी दैट आई एम कीपिंग द वैल्यूएबल्स सेफली देयर। क्यों? बैंक है भाई, हर बैंक थोड़ी ना चोरी होती है, मतलब कितने भी हम लोग मनी हाइस्ट देख ले, पर रियल लाइफ में ऐसे मनी हाइस्ट इतने आसान नहीं होते, राइट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स they would create, there were the times when they would create the project reports for their customers। आज की तारीख में तो कस्टमर को बोलते हैं तुम भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के आओ, राइट। गिफ्ट चेक्स, आज की तारीख में गिफ्ट चेक्स की जगह गिफ्ट कार्ड्स आ गए हैं। यू गेट दोज ATM कार्ड्स through which you can give to someone and that person can use the amount which is loaded on that particular card। underwriting services, shares, issue of shares में आपने कहीं सीखा होगा that there is an underwriting done। underwriting is what? सपोज अब रिसेंटली कोई पर्टिकुलर कंपनी ने IPO लाया, अब उस कंपनी को डर है कि भाई अपने पूरे शेयर्स मार्केट उठाएगा या नहीं उठाएगा, पब्लिक उठाएगी या नहीं उठाएगी, तो ये डर को अवॉइड करने के लिए दे अपॉइंट द एजेंट। दैट एजेंट चार्जेस द कमीशन, भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हारे शेयर नहीं बिके हम उठा लेंगे। This process is called as underwriting services। They underwrite, they agree, if the public does not buy your shares, they will take all your shares। That's why it is called as underwriting service। Of course, fees will be paid only for the shares underwritten by them। जितने की गारंटी दी थी, मान लो आपका 5 करोड़ शेयर्स का IPO है और इन्होंने आपको सिर्फ 2 करोड़ शेयर्स तक की गारंटी दी है, तो 2 करोड़ की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमीशन भी 2 करोड़ शेयर्स पे मिलेगी, राइट। देन गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज, लाइक दीज डेज दे प्रोवाइड यू द गोल्ड एक्सचेंज, दे प्रोवाइड यू द गोल्ड वेरिफिकेशन, दे प्रोवाइड यू द गोल्ड लोन्स एज वेल। सो दीज आर नथिंग बट द गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज। आज की तारीख में हमारे पास ई बैंकिंग सर्विसेज, बैंक से रिलेटेड जो अवेलेबल है, अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम द शॉर्ट नोट परस्पेक्टिव, राइट द नोट ऑन द ई बैंकिंग सर्विसेज। E-banking services are nothing but the services through the internet. That's why those are called as e-banking services. The benefit of e-banking services, on the go service, it can work at any point in time, even on the public holidays of the bank. There is no need to visit the bank branch for getting these particular services done, and that's why those services are more in vogue or more used by the customers these days. What are those? Number one, ATM। मतलब एक समय था सीरियसली, जब मैं पूना में पहली बार आया था, पूरे पूना में सब मिला के एक लगभग 20 ATM होंगे, 20 ATMs पूरे पुणे में। बट वो जो ICICI का कैंपस एट ATM, सॉरी कैंपस एट बैंक आया था ना, सॉरी बैंक एट कैंपस, इस तरह का वो अकाउंट का नाम था, बैंक एट कैंपस। आपके कैंपस पे आके वो अकाउंट ओपन करते थे। उसके बाद पूना में पान ठेले कम दिख रहे थे, ICICI बैंक के ATM ज्यादा दिख रहे थे। लिटरली इतने इन्होंने ATM खोले, और उसके बाद अब तो खैर मतलब होड़ मच गई है, अब तो हर बैंक के हर जगह पे गली चौखार में कहीं पे भी चले जाओ ATM दिख ही जाता है, राइट। भले आज की तारीख में हमें जरूरत ना पड़े, ATM की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी थी डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, सबसे ज्यादा आवश्यकता जब ATM की जरूरत पड़ी थी, मतलब लोगों को एहसास हुआ, उस समय पे लोगों ने ऐप बनाए थे, ATM नियर यू विद द कैश, ATM नियर यू विद द कैश, मतलब इस तरह वो ऐप बनाई, उसमें सर्च करो कौन से ATM पे कैश पड़ा है, उस समय पे लोग वहां पे भीड़ जमाते थे। यार लोगों ने तो लाइनें लगाई थी कि ATM के बाहर अब पैसे जमा हो रहे हैं, हम लोग 2-2 हजार रुपए करके पैसे विड्रॉ करेंगे। खैर किल्लत मची थी पैसे की, वो एक समय आया था
और कुछ लोगों ने तो पैसे पार्क कर दिए अलग अलग लोगों के अकाउंट्स में। भाई तू रख तेरे पास, 6 महीने तक मैं तेरे से पैसे नहीं मांगूंगा, 6 महीने बाद विड्रॉ करूंगा जब ये सब कुछ शांत हो जाएगा उसके बाद। लिटरली पीपल हैड पार्क द मनी कि मेरे पास अगर 500 करोड़ रुपए पड़े, 1-1 करोड़ रुपए 500 लोगों के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दो। दे डिड इट। क्यों? तो इंडिविजुअल्स, क्यों उस समय पे क्या हुआ था, समय में पिन मनी होती थी। कंसेप्ट पिन मनी, पिन मनी इज व्हाट, द मनी दैट यू गिव टू योर लेडीज एट होम, द होम मेकर्स। तो पिन मनी के नाम पे लोगों ने कितने पैसे डिपॉजिट करवाए कि मैं इसको रोज 1,000 रुपए देता था, देता धेला भी नहीं था, रोज 1,000 रुपए देता था। मतलब मैंने साल के हो गए 365,000, 3.5 लाख। और ऐसे मैं पिछले 3 साल, सॉरी पिछले 10 साल से कर रहा हूं। क्यों? तो हमारी शादी को 15 साल हो गए, मैं पिछले 10 साल से इसको पैसे दे रहा हूं। मतलब इसके पास मेरे 36 लाख जमा है। पिन मनी, नो चैलेंज, यू गो टू द बैंक, डिपॉजिट, दिस वॉज पिन मनी। नो वन वुड चैलेंज, इसके ऊपर तुमने टैक्स नहीं भरा कि क्या नहीं भरा, लगता ही नहीं है। मेरी इनकम पे तो मैंने टैक्स भरा हुआ है ना, तब पिन मनी है, इस पे मैं कैसे टैक्स भरूंगा? तो मैंने, इट इज एप्लीकेशन ऑफ मनी ना, एप्लीकेशन ऑफ इनकम पे कोई टैक्स नहीं होता है। तो दैट इज हाउ द पीपल हैड सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस और कैश भी। और जस्ट इमेजिन करो, जिस बंदे के घर में सपोज 10 लेडीज है, ऐसे लोग डिमांड में थे, लाड़की बहन की वजह से नहीं, सच में बहन लाड़की थी उस टाइम पे, क्योंकि उस बहन के अकाउंट में इस भाई के पैसे थे। तो कल को ये मुकर जाए, मेरा पिन मनी है, तुम कौन? तो दैट वाज आल्सो द रिस्क ना। तो एनीवेज, और इसके लोगों ने चार्जेस लगाए हैं कि मैं मेरे अकाउंट में 30 लाख रुपए डिपॉजिट करवाता हूं, तुमको वापस 25 ही। तो सामने वाला बंदा एक्सेप्ट करने को भी रेडी। क्यों भाई? 15% जा रहा है ना। जेटली साहब was the finance minister at that time, he was charging 50% for disclosure of income। आप रैंडम डिस्क्लोजर ऑफ इनकम कर दो, आपके पास 500 करोड़ रुपया, 250 करोड़ तुम्हारा पक्का, 250 हमारा हुआ। दिस इज व्हाट दे हैड डन, वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम इज व्हाट दे वुड कॉल इट एज। खैर, तो एटीएम्स वर द काइंड ऑफ थिंग। क्रेडिट कार्ड्स आज की तारीख में ई बैंकिंग सर्विसेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत प्रोमिनेंट, इनफैक्ट आज की तारीख में ये सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली बैंकिंग सर्विस है, क्रेडिट कार्ड्स एंड द सिमिलर वे डेबिट कार्ड्स। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज व्हाट? क्रेडिट कार्ड इज काइंड ऑफ लोन, डेबिट कार्ड इज अगेंस्ट योर अकाउंट। तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, उतने में से आप पैसा यूज कर सकते हो। देन आरटीजीएस, दैट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आप अभी पैसे डिपॉजिट करो, ट्रांसफर करो, अगले मोमेंट पे सामने वाले बंदे के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नॉर्मली आरटीजीएस इज डन फॉर एन अमाउंट मोर देन 10 लाख रुपीज, right? Whereas NEFT, that is National Electronic Fund Transfer, in that case the amount more than 2 lakh rupees up to 10 lakh rupees, you do the transfer through the NEFT. But NEFT is done through the batch processing. Batch processing is what? एक particular batch accumulate की जाती है और उस accumulated batch को transfer किया जाता है। तो इसलिए the money gets transferred into your account within a period of 24 hours when you are transferring it through NEFT. RTGS within 30 minutes maximum, maximum. NEFT within a maximum period of 24 hours. Then मोबाइल बैंकिंग एंड नेट बैंकिंग सर्विसेज, आज की तारीख में इसके बारे में बात ना करें तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। आप मोबाइल के थ्रू बैंक्स को यूज कर रहे हो, आपके बैंक में, आपकी बैंक आपके पॉकेट में है। दैट इज हाउ द मोबाइल बैंकिंग इज प्रमोटेड एंड एडवर्टाइज्ड। एंड IMPS फैसिलिटीज, दिस वर्क्स इवन ऑन द पब्लिक हॉलीडेज, दिस वर्क्स ऑन एनी गिवन टाइम एट एनी गिवन डे, दिस वर्क्स अप टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 2 लाख रुपीज। IMPS का मैक्सिमम लिमिट 2 lakh rupees, works only on any given day including public holidays. There is no restriction, no limitation on the number of transactions, but the total value of transactions cannot exceed 2 lakh rupees in a day. आपका जो QR कोड पेमेंट वगैरह जो सिस्टम काम करता है, that is working only on IMPS system. जो आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो या QR कोड स्कैन करके ट्रांसफर करते हो, that works on IMPS system. So this was about banking. तो बैंकिंग के 5 हिस्से आपने ध्यान में रखने हैं। टाइप्स ऑफ बैंक्स, फंक्शंस ऑफ बैंक। फंक्शंस ऑफ बैंक में 2 फंक्शंस, प्राइमरी, सेकेंडरी। सेकेंडरी फंक्शंस में यूटिलिटी, एजेंसी। प्राइमरी में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, प्रोवाइडिंग लोन्स। देन यूटिलिटी फंक्शंस और एजेंसी फंक्शंस के जो टाइप्स हैं वो आपको ध्यान में रखने होंगे। और 5वां हिस्सा जो है, दैट इज नथिंग बट
द ई बैंकिंग सर्विसेज। इस तरह के 5 हिस्सों में आपको बैंक्स को कवर करना है। पॉइंट राइट। द नेक्स्ट वन दैट इज इंश्योरेंस as a service that we have to talk about. Should I continue or we can continue on Monday? As you people say, I don't mind. Okay. Insurance basically is for the risk coverage. What kind of risk? Risk of financial loss. Insurance is not for the risk of human loss. It is only for the risk of financial loss. So if any and every business is expecting any kind of financial loss to take place, or any individual is expecting to have a financial loss in the form of medical expenses or the life loss, in such cases you can cover it through the insurance. The business faces variety of risks. Such risks may involve financial losses. To protect from financial losses, we have insurance. Very important. याद रखिएगा हमेशा, only and only to protect from the financial losses we have the insurance. It is the form of risk management against the contingent losses which are unknown, which are uncertain, and that's why those are called as contingent. It is a contract between the insured and insurer. जिस व्यक्ति के लिए या जो व्यक्ति अपने लिए इंश्योरेंस ले रहा है उसे हम लोग इंश्योर्ड कहते हैं, और जो कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन आपको इंश्योरेंस दे रही है उसे हम लोग इंश्योरर कहते हैं. Insurer agrees to compensate against the losses, whereas insured pays certain fixed amount regularly called as premium. So what are the basic terms? Insured, the person who is expecting the loss, the person or object against which the insurance is taken. मैंने अगर इस फर्नीचर के अगेंस्ट इंश्योरेंस किया तो दिस फर्नीचर बिकम्स इंश्योर्ड. मैंने मेरी गाड़ी के अगेंस्ट इंश्योरेंस लिया तो माई व्हीकल गेट्स इंश्योर्ड. मैंने मेरी लाइफ के अगेंस्ट इंश्योरेंस लिया तो माई लाइफ गेट्स इंश्योर्ड. तो person or activity or object for which I am taking the insurance will be called as insured. Then premium, a sum which is paid at the regular intervals to keep the insurance active. अगर आपको आपका इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिव रखना है, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से किसी भी तरह के कॉम्पेंसेशन चाहते हो तो उसके लिए आपको मैंडेटरीली कंपल्सरीली प्रीमियम भरते रहना पड़ेगा. क्लेम द अमाउंट विच इज पेएबल एट द टाइम ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट. जब भी कुछ गलत चीज होती है उस समय पे जब आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगते हो, दैट अमाउंट बी इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल एज क्लेम. देन इंश्योरर, द पर्सन हु इज गिविंग यू द इंश्योरेंस इज कॉल्ड एज इंश्योरर. पॉलिसी इज नथिंग बट एन एग्रीमेंट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर. प्रपोजल. नाउ इंश्योरेंस इज द प्रोडक्ट विच इज सोल्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी एट योर रिक्वेस्ट. तो जब आपकी कंपनी इंश्योरेंस की कोई एडवर्टाइजमेंट करती है तो इट इज इन्विटेशन टू ऑफर. यू मेक द प्रपोजल टू द इंश्योरेंस कंपनी, प्लीज गिव मी द इंश्योरेंस, एंड देन इंश्योरेंस कंपनी लुकिंग एट द सर्कमस्टांसेस एक्सेप्टेड कि तुमको इंश्योरेंस मिलना चाहिए या नहीं. हाँ, वो सोलिसिटेशन हो गया कि तुम हमसे इंश्योरेंस लो, फिर तुम प्रपोज करते हो प्लीज मेरे को इंश्योरेंस दो, और फिर इंश्योरेंस कंपनी तय करती है कि हां तुमको इंश्योरेंस मिलेगा. राइट. तो जो कॉल वगैरह आते हैं दोज आर इनविटेशन टू ऑफर, दोज आर नॉट द ऑफर्स, इसलिए उसे प्रपोजल कहा जाता है. राइट. देन सब्जेक्ट मैटर, जिसके लिए आपने इंश्योरेंस लिया. मैंने फर्नीचर के लिए इंश्योरेंस लिया तो फर्नीचर बिकम सब्जेक्ट मैटर. मैंने गाड़ी के लिए इंश्योरेंस लिया तो गाड़ी बिकम्स अ सब्जेक्ट मैटर. मेरा जिसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो वो सब्जेक्ट मैटर. राइट. अगेंस्ट विच द इंश्योरेंस इज टेकन इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट मैटर. दो इंपॉर्टेंट चीजें अंडर द इंश्योरेंस, दैट इज नंबर 1 इज द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस एंड नंबर 2 इज द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में 3 हिस्से, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस. इन चीजों पे आपको फोकस करना है इंश्योरेंस में. टोटल 4. क्या क्या 4? प्रिंसिपल्स, लाइफ, मरीन एंड फायर. आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस तक खत्म कर लेंगे. राइट. द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस बेसिकली इंक्लूड नंबर 1, द वेरी फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. तुम मुझे पूरी जानकारी दोगे, उस बेसिस पे मैं पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा कि मैं क्या कवर करूंगा क्या नहीं करूंगा.
तुम जब तक मुझे पूरी जानकारी नहीं दोगे तब तक मैं तुमको पूरी खबर कैसे दूंगा? दैट्स व्हाई इट इज द प्रिंसिपल ऑफ utmost गुड फेथ. You give the complete and utmost information required for that insurance by which the insurance may get affected, and I give you the complete and clear information कि मैं कितने तक का क्लेम कब और कैसे दे पाऊंगा. Right? Insurance contracts are contracts of mutual trust and confidence. Both the parties must disclose all the relevant information relating to subject matter. Like if there is a person who is alcoholic in nature, the person who consumes alcohol on a regular basis, in that case the person is expected to give the declaration that he consumes alcohol, and that too with what frequency has to be disclosed, क्योंकि उससे आपका इंश्योरेंस का अमाउंट या इंश्योरेंस का सब अश्योर्ड अफेक्ट हो सकता है. या किसी बंदे को पहले से कोई पीड़ा है, किसी बंदे को पहले से कोई प्रॉब्लम है, कोई पर्टिकुलर रोग है, और उसने इंश्योरेंस सिर्फ इसलिए लिया ताकि इस रोग को निवार करके जो मेरे पैसे का खर्च आएगा वो मैं इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर करूंगा. अगर आपको पहले से कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो इंश्योरेंस कंपनी डू नॉट गिव यू द कवरेज फॉर दैट, और इंश्योरेंस कंपनी कैन होल्ड इट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि 2 साल तक के तुमको इसके अगेंस्ट क्लेम नहीं मिलेगा, उसके बाद ही तुम क्लेम कर पाओगे. किसी बंदे को कैंसर डिटेक्ट हुआ, उसके बाद वो इंश्योरेंस लेने जाता है, और बाद में अगर सपोज वो ट्रीटमेंट लेने जाता है तो कंपनी कैन रिजेक्ट दैट पर्टिकुलर क्लेम. व्हाई? क्योंकि पहले से पता था ना, तुम पहले से डिस्क्लोज करते इंश्योरेंस ही नहीं मिलता. इंश्योरेंस इज फॉर द अनफॉर्चून थिंग्स, अननोन इवेंट्स, कॉन्टिंजेंसीज, और इसीलिए इंश्योरेंस इज नॉट अवेलेबल फॉर द नोन थिंग्स. इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ बिकम्स इंपॉर्टेंट. On concealment about the material facts, the contract will not be valid. Then principle of insurable interest. आप जिस चीज के लिए, जिसको कवर करने के लिए, जिस लॉस को कवर करने के लिए इंश्योरेंस ले रहे हो, वो जब आप इंश्योरेंस ले रहे हो तब भी अस्तित्व में होना चाहिए, जब आप क्लेम कर रहे हो तब भी अस्तित्व में होना चाहिए. आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, मतलब मैंने अब तक के गाड़ी खरीदी नहीं, मेरे को गाड़ी का इंश्योरेंस चाहिए. क्यों? मैं गाड़ी खरीदने वाला हूं, उसका अगर लॉस हो गया तो यू कैन नॉट टेक इट. पहले गाड़ी खरीदो, तुम्हारे नाम पे गाड़ी रजिस्टर होगी, तब न जाके तुमको उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस मिलेगा. उसके बगैर तुम्हारे नाम पे इंश्योरेंस नहीं मिल सकता, बिकॉज यू डोंट हैव द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दैट. राइट? बिकॉज प्रॉपर्टी सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अगर आपको याद होगा, रिस्क फॉलोज द ओनरशिप और नॉट. जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क. तुमने गाड़ी खरीदी, वो गैरेज में, सॉरी शोरूम में खड़ी है, शोरूम को आग लग गई, गाड़ी खराब हो गई, तुम्हारी रिस्पॉन्स नहीं है. क्यों? प्रॉपर्टी कहां ट्रांसफर हुई? ना मेरे पास इनवॉइस आया, ना मेरे को तुमने गाड़ी का पोजीशन दिया. अगर सपोज मैंने तुमको बोला कि हाँ तुम गाड़ी का पोजीशन, मैं तुमसे गाड़ी का पोजीशन ले लिया, पर तुमको बोला तुम गाड़ी यहीं पे रखो, मैं कल ले जाऊंगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, उस समय पे अगर लॉस हुआ तो वो मेरा. क्यों? तब तक इंश्योरेंस भी मेरे नाम पे आ गया ही नहीं. So insurable interest has to exist at the time of taking the insurance as well as at the time of claiming the loss. अब सपोज मैं गाड़ी छोड़ के आया, बाद में आग लगी, उसके बाद में मेरा नुकसान हुआ, तो वो सेलर उसके अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकता. क्यों? सेलर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट खत्म हो गया, क्योंकि गाड़ी तो बिक चुकी, गाड़ी अब बायर की हो गई. सो लॉस विल बी बोर्न बाय बायर, रिस्क ऑफ लॉस विल बी क्लेम्ड बाय बायर. इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स you have the financial loss on the loss of the given person or that particular object. Insurable interest means the financial or pecuniary interest in the subject matter of the insurance. Insured must have the insurable interest in the subject matter of the insurance. Insurable interest must exist at the time of taking the policy as well as at the time of loss. मतलब क्या? सपोज मेरी लाइफ के अगेंस्ट इंश्योरेंस लिया गया, मेरी फैमिली का मेरे में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है या नहीं? क्यों? मेरा लॉस इज देयर फाइनेंशियल लॉस और नॉट. राइट? मैं आज जो कमा के जा रहा हूं वो घर पे ले जा रहा हूं, घर पे एंजॉयमेंट हो रही है. नाउ सेम काइंड ऑफ एंजॉयमेंट इफ दे वांट टू कंटिन्यू, दैट मींस दे हैव द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन मी और नॉट. कल को अगर मेरा लॉस होता है तो उनका भी फाइनेंशियल लॉस होगा. इसीलिए फैमिली को क्लेम लाइफ पे क्यों दिए जाते हैं? तो इस कारण से, because family has the insurable interest at the time of taking the policy as well as at the time of loss.
one right. Principle of indemnity, this does not apply to the life insurance. Indemnity is what? Bringing you into the same position with the same situation. That is what is called as indemnity. अब ये लाइफ में क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है? सेम पोजीशन, सेम सिचुएशन कहां से लाएंगे? ब्रह्मदेव को लाना पड़ेगा भाई, इसके प्राण वापस से फूको, या फिर अंबुजा सीमेंट खिलाना पड़ेगा, सीमेंट में जान है ना। तो सर एक तो हम लोग कंसिस्टेंटली बैठ रहे हैं, अब 2-2 घंटे कंटिन्यूअस बोल रहे हो और हम लोग सुन रहे हैं विदाउट द ब्रेक, जिसकी हमको आदत है, हमको अकाउंट्स में आदत है, ये तो थ्योरी चल रहा है, राइट? ब्रेक तुमको नहीं चाहिए होता है। खैर, indemnity means compensating somebody for the actual loss suffered by them, restore someone to the same position that he/she was in before the insured event took place. फायर इंश्योरेंस, आग लगी, आग में फर्नीचर का नुकसान हुआ, फर्नीचर को रिस्टोर किया जा सकता है या नहीं? गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी को रिस्टोर किया जा सकता है नहीं? And for that, whatever will be the expense, that will be compensated by the insurance company. So they are bringing the same situation, same position or not? That's why it is said that it can bring you into same position, same situation. That's why principle of indemnity applies only to fire and marine insurance, but not to the life insurance. This principle is applicable to fire and marine and general insurance, but not to the life insurance. General insurance, हड्डी टूट गई, आपने ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट करवाई, हड्डी कैन बी रिस्टोर्ड और नॉट? यस और नो? आजकल तो रिप्लेस करके देते हैं, तुम्हारी वाली काम नहीं करी, चलो हमारी वाली हड्डी लगवा लो। So that is how it happens actually. मतलब नी रिप्लेसमेंट इज द काइंड ऑफ स्टैंडर्ड नाउअडेज। एक तो विटामिन डी हमारा उठे सुठे खत्म होता है, चलते फिरते हमारा विटामिन डी कम हो गया। दैट इज द काइंड ऑफ स्टैंडर्ड दैट वी हैव हर्ड। मतलब तुम कोई भी किसी भी रैंडम टाइम पे टेस्ट करवा के आओ, कोई भी हमारी दुनिया का कोई भी व्यक्ति, उसका विटामिन डी हमेशा कम ही निकलेगा। क्यों? एक तो उन्होंने बेंचमार्क ऊपर कर दिया, पहले का जो बेंचमार्क था उससे ऊपर ले गए, इससे ऊपर ही विटामिन डी होना चाहिए। तो एक वो रीजन। दूसरा, हमारा लाइफस्टाइल इतना अच्छा है ना, इतना जबरदस्त लाइफस्टाइल जी रहे हैं हम लोग। तुमको पता है वो मिलेट्स was brought into the budget. Millets was highlight. Millets is बाजरा आणि ज्वारी. This millet was brought into the budget for giving them the proper support. क्यों लाया गया पता है? Is it only because that बाजरा एंड ज्वारी को सच में सपोर्ट की जरूरत है? नहीं, लोग कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। हम लोग को कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न पता है, वो तो अब खैर मतलब वो हम लोग खाते भी थे पहले। जब पिक्चर में, थिएटर में पिक्चर देखने गए तो पॉपकॉर्न का डब्बा पहले लेके जाएंगे, और वहीं अगर कोई प्रॉपर हेल्दी फूड मिल रहा होगा वो नहीं लेंगे। व्हाई? क्योंकि हमको हेल्दी फूड खाने की आदत छूट चुकी है। मिलेट्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर योर विटामिन, कैल्शियम एंड विटामिन एंड कैल्शियम बोथ, विटामिन डी स्पेशली। फॉर दैट मैटर, वो फुटाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फुटाना, चना नहीं, चना येलो वाला नहीं बे, पीनट तो शेंगदाना हुआ ना पागल। चने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काइंड ऑफ कर्नल्स, मतलब वो सीरियल्स होते हैं, काइंड ऑफ सीरियल्स। ये सीरियल्स वो मुन्ना में एमबीबीएस में दिखाया हुआ है, ये तू फुटाना खा, तेरा हड्डी का ताकत बढ़ेगा। दैट्स अ फैक्ट। मुझे याद है, मैं बचपन में ननिहाल जाया करता था, तो वो मेरी एक मासी रहती वहां पे, वो हमें रोज फुटाना और गुड़ साथ में देती थी, और एक कटोरी भर के देती थी, ये खत्म करना पड़ेगा। और वो धूप में बिठाती थी कि धूप में बैठो, ये चना फुटाना खाते रहो। लिटरली वी यूज्ड टू डू इट। आज की तारीख में हमको याद भी नहीं है फुटाना नाम का कंसेप्ट मिलता है, पता भी नहीं है। हालांकि इट इज द बेस्ट सप्लीमेंट ऑफ योर विटामिन डी। हम लोग को पिज्जा पसंद है, बर्गर पसंद है,
पर इस तरह के आइटम गुड़ चना ये अगर दिया जाए साथ में, अभी ये घोड़ों का खाना हमको क्यों खिला रहे हैं? दैट इज हाउ इट इज सेड। सच में मतलब फैक्ट है। कई सारे महाराष्ट्रियन होटल्स में चले जाओ आप, महाराष्ट्रियन होटल्स में वो स्पेशली सर्व करते हैं पीनट्स विद गुड़ और चना विद गुड़। व्हाई? बिकॉज इट हैज गॉट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो अब कहां कहने का तात्पर्य क्या कि तुम्हारी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और इस वजह से बंदा 40-45 में पहुंचा नहीं, नी रिप्लेसमेंट करवाने जाता है। वो प्लास्टिक के कप लगवा के आते हैं वहां पे, तो सोफिस्टिकेटेड क्वालिटी के प्लास्टिक होते हैं वो कप, मतलब वो टोपी टोपी, तो नी की जो टोपी होती है ना, उसी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। और कितने को आती है बड़े पता है वो नी की टोपी? सिर्फ 2 लाख रुपए में। और आजकल रिप्लेस कौन कर रहा है? रोबोट्स, नॉट इवन ह्यूमंस। अब इसका जो खर्चा आएगा दैट इज कमिंग अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। क्यों? एज इज वेरियस पोजीशन में लेके आए ना कि तुम्हारी नी काम नहीं कर रही थी, नी में दर्द हो गया, मतलब दर्द उधर दर्द हुआ, मतलब अपना दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, सब घुटने में ही है। तो पॉइंट इज व्हाट दैट दिस इज, एक समय होता था घुटना यूज किया जाता था लोगों को मारने के लिए। हाँ, मतलब किसी ने पकड़ा, ऐसा पकड़ के धड़ 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 3 घुटने मारे, बंदा वही धराशायी। तो आजकल बंदा पहले उसको संभालता है। एनीवेज, so this was about the principle of indemnity as is various position. The next one, the principle of subrogation. Subrogation is what? अगर मान लो आपका जो लॉस हुआ, उस लॉस को कॉम्पेंसेट करने के बाद वहां पे अगर कोई चीज बच जाती है, सैल्वेज बच जाता है, that salvage will get transferred to the company which is providing you the compensation. That is why it is called as principle of subrogation. Once the claim of insured has been settled, the ownership right of the subject matter of the insurance passes to the insurer. मतलब क्या? अभी एग्जांपल भी वही दिया हुआ है, अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई, राइट? गाड़ी चोरी होने के बाद में आपको उसका कॉम्पेंसेशन मिल गया। अब कॉम्पेंसेशन मिलने के बाद में गाड़ी मिल गई, यू डू नॉट हैव द राइट ऑन दैट व्हीकल। क्यों? अगेंस्ट कॉम्पेंसेशन मिल गया ना, तो अब गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी की हो गई। दैट इज हाउ द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन वर्क्स। देन प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर आपने मल्टीपल कंपनी से इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है, मान लो आपने स्टार हेल्थ से एक 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले रखा है आपके हेल्थ पे, आपने टाटा AIG से एक 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले रखा है, आपने मान लो किसी और सपोज मैक्स बूपा, उससे आपने 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले रखा है, ऐसे मिला के आपने 40 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले रखा है, राइट? कोई हेल्थ सिचुएशन आई, आपका 3 लाख रुपए का खर्च हुआ, आप पहले गए स्टार वालों के पास, उनसे 3 लाख रुपए लिए, फिर आप गए मैक्स बूपा वालों के पास, उनसे 3 लाख रुपए लिए, फिर आप गए वो कौन सा था तीसरा, AIG, टाटा AIG, उससे आपने 3 लाख रुपए लिए। खर्चा 3, रिकवरी 9। बढ़िया धंधा है। तो हर साल सिर्फ हॉस्पिटल में एडमिट होना है अपने को, भाई तू 5 लाख रुपए का बिल निकाल, बस अपन ने सबसे पैसे वसूल करने। तो बेस्ट है ना। प्रीमियम कितना? 50,000 रुपए। 1 लाख रुपए सबका मिला के, 1 लाख रुपए का प्रीमियम, 15 लाख रुपए की रिकवरी, 14 लाख रुपए का प्रॉफिट। क्यों कोई धंधा करना है मैंने? दिस डज नॉट वर्क लाइक दैट। देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ contribution. If you have taken multiple insurances, those multiple insurance companies will contribute together only to the extent of loss. मतलब आप 4 लाख रुपए 4 कंपनी से रिकवर नहीं कर सकते, 4 लाख रुपए 4 कंपनी से 1-1 लाख करके वसूल कर सकते। सपोज आपका 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ, आप 4 लाख के अगेंस्ट सिर्फ स्टार वालों से 4 लाख रुपए ले आए, 5 लाख का इंश्योरेंस था आपका, उनसे 4 लाख ले लिए। नाउ स्टार हेल्थ has got the option of recovering the differential amount from Tata AIG as well as Max Bupa. They can, provided Star Health को आपने बता के रखा भाई टाटा AIG के पास 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस है और इसके पास 25 लाख, वो प्रोपोर्शनेट क्लेम ले सकता है। इस केस में आपका स्टार हेल्थ का इंश्योरेंस कवरेज ज्यादा हो सकता है, पर otherwise than that you cannot have the multiple claims for the same amount of loss. Subject matter may be insured with more than one insurer. The insurance claim to be paid to the insured must be shared or contributed by all the insurers in proportion. Then principle of mitigation of loss. मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, मेरी लाइफ का 5 करोड़ का इंश्योरेंस है, तो मैं रास्ते से कैसे भी घूमता हूँ,
एकदम रास्ते के बीच से जाके खड़े हो जाता हूं, हाँ मेरा 5 करोड़ का इंश्योरेंस है, राइट? यू कैन नॉट, इवन दो, मतलब उस केस में अगर मेरी डेथ हो जाती है तो इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी कैन रिजेक्ट दैट क्लेम. व्हाई? बिकॉज इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व माय लाइफ. Just because I am insured, now I can do anything is not allowed. There has to be the principle of mitigation of loss. कि मैंने ट्राई करना चाहिए कि भाई लॉस नहीं होना चाहिए, एज इफ आई एम अनइंश्योर्ड. इफ दैट इज द केस देन, इसीलिए अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो सुसाइड केस में कभी भी क्लेम नहीं मिलता, क्योंकि वो सेल्फ लॉस होता है, एक्सीडेंटल या नेचुरल डेथ नहीं होता. What is covered in the life insurance is the accidental death. What is covered is the natural death, but not the self death, right? The insured is expected to act in a manner as if the subject matter has not been insured. If the appropriate steps are not taken to save the assets, then insured may not get the full compensation from the insurance company. मतलब ये ऐसा हुआ कि मैंने इंश्योरेंस लिया मेरी गाड़ी का और फिर मैंने किसी कंपनी को बोला इसका डैश टेस्ट करवा दो. इंश्योर्ड है, कोई टेंशन वाली बात, तुम डैश मारो, देखे तो सही. यू आर सपोज टू प्रोटेक्ट दैट लॉस, तुम उसको ही डैश के लिए दे रहे हो, डोंट गेट द क्लेम, राइट? एंड देन प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा. व्हाट इज द क्लोजेस्ट लॉस रीजन, दैट इज व्हाट इज कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग द इंश्योरेंस. अगर मैंने चोरी के लिए इंश्योरेंस करवाया, थेफ्ट के लिए, और मार्केट में राइट हुए, और राइट की वजह से अगर मेरे दुकान में से अगर चोरी हो गई, आई वोंट गेट द क्लेम. व्हाई? क्लोजेस्ट रीजन फॉर लॉस वाज नॉट द थेफ्ट, क्लोजेस्ट रीजन वाज राइट. राइट नहीं होते तो चोरी होती ही नहीं ना, राइट? मैंने अगर स्प्रिंकलर लीकेज का लॉस लिया हुआ है, स्प्रिंकलर का अगर लीकेज हो गया तो वो लॉस मेरे को मिलना चाहिए, स्प्रिंकलर लीकेज का लॉस. इन दैट केस अगर सपोज बाहर से किसी ने खींच के पत्थर मारा और वो पत्थर उसको लग के वो अगर स्प्रिंकलर फूट गया और फिर उसकी वजह से लॉस हुआ, आई वोंट गेट द क्लेम. व्हाई? स्प्रिंकलर लीकेज नहीं है, स्प्रिंकलर ब्रेकेज है. वो क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमेट रीजन फॉर द लॉस हैज टू बी चेक्ड. द इंश्योर्ड कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन ओनली इफ द लॉस इज कॉज्ड बाय द इवेंट इंश्योर्ड अगेंस्ट. उसका जो रीजन होगा उसी के अगेंस्ट आपको क्लेम मिलेगा. Is it right? So this was about the principles. Our next lecture will be on Monday. In Monday's session we'll be talking about, इस संडे को मैं लेक्चर नहीं ले रहा हूं, बट नेक्स्ट संडे को लेक्चर होगा. नेक्स्ट संडे वाला लेक्चर 3 घंटे का होगा. We'll take the break in between, don't worry on that part. The types of insurance and warehousing, this is what I'm going to finish in day after's lecture. और अगर possible हुआ तो day after we'll be starting with the writing as well. Alright, so please come prepared. That's it. Thank you. Bye-bye.